السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ڈسکشن فورم کا ٹاپک بھی آسکنگ دا رائٹ کویشچن، آسکنگ دا بگر کویشچن۔ سب سے پہلے جن گروپس کی پریزنٹیشنز ہیں اور انہوں نے سلاٹ بک کیا ہوا ہے، پلیز ریز یور ہینڈ تاکہ وہ آسانی سے آئیڈینٹیفائی ہو سکیں۔ سب سے پہلے آئی کین سی C125 اسوا نعیم، پلیز انمیوٹ کیجیے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کی پریزنٹیشن ہے آج؟ اس کو میوٹ نہ کریے۔ جی اوکے، جی ہاں جی ہے آج۔ آپ کو اسکرین شیئرنگ چاہیے؟ ہاں جی اب آپ اسکرین شیئر کر سکتے ہیں۔ میری اسکرین ویزیبل ہے آپ کو؟ جی نہیں۔ چلیے میں اس کے بغیر کنٹینیو کرنا چاہتی ہوں۔ اوکے، آپ ٹرائی کر لیں اف اٹس پاسبل۔ اوکے ایک دفعہ دوبارہ ٹرائی کریں۔ جی میرے پاس وہ آگے سے کلیئر نہیں ہو رہا مجھے کیا کرنا ہے، ایسے ہی کرتی ہوں۔ اوکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، my name is Uswa Naeem and I am from C125. I am here to present task 5 in front of you. جو ہمارا ٹاسک 5 تھا وہ بیس کر رہا تھا برین اسٹارمنگ پر۔ برین اسٹارمنگ کیا ہے؟ کسی بھی چیز کو انالائز کرنے کے لیے ہمیں جو بیسک تھنکنگ ماڈل ریکوائر ہوتا ہے اسے ہم برین اسٹارمنگ کا نام دیتے ہیں۔ پھر ہم اپنے کوشچن 1 کی طرف موو کرتے ہیں جس میں ورٹیکل اینڈ ہاریزونٹل کوشچنس کا ذکر تھا۔ ہم نے اپنی ڈسکشن میں ورٹیکل اینڈ ہاریزونٹل کوشچنس کو ریپلیس کیا تھا تھنکنگ کے ساتھ، ورٹیکل تھنکنگ اینڈ ہاریزونٹل تھنکنگ۔ ورٹیکل تھنکنگ وہ ہم نے اس لیے دیکھا تھا کیونکہ جو ہمارے برین کا لیفٹ ہیمیسفیئر ہے وہ بالکل وہی کام کر رہا تھا جو ورٹیکل تھنکنگ کرتی ہے۔ اسی طرح جو ہمارے برین کا رائٹ ہیمیسفیئر ہے وہ بالکل انہی چیزوں پہ بیس کرتا ہے جس پہ ہاریزونٹل تھنکنگ بیس کرتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہاریزونٹل اینڈ ورٹیکل کوشچنس ہوتے کیا ہیں۔ ہاریزونٹل کوشچنس ایسے کوشچنس ہوتے ہیں جو نالج بیس ہوتے ہیں اور ان کو نالج گین کرنے کے لیے پوچھا جاتا ہے، اور وہ کلوز اینڈیڈ کوشچنس ہوتے ہیں۔ اس لیے کلوز اینڈیڈ ہوتے ہیں کیونکہ ہم اس میں کسی بھی ٹاپک کو جب ڈسکس کرتے ہیں تو ہم اس میں اتنی ڈیپتھ میں نہیں جاتے، جبکہ جو ورٹیکل کوشچنس ہوتے ہیں وہ اوپن اینڈیڈ ہوتے ہیں۔ اس میں ہم جس بھی ٹاپک کو ڈسکس کرتے ہیں اس میں ہم بہت زیادہ ڈیٹیل میں جاتے ہیں اور وہ وزڈم بیس ہوتے ہیں۔ اس کی ایگزامپل ہم لیتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس ایک سیرا کی ایسی کتاب ہے جس میں سیرا کے ہر ٹاپک کو انہوں نے بریفلی کور کیا ہے تو وہ ہمارے پاس ہاریزونٹل اپروچ ہوگی، جبکہ دوسری طرف ہمارے پاس ایک ایسی کتاب ہے جس میں کوئی ایک ٹاپک سیرا کا لے کے، مثال کے طور پہ غزوہ بدر کو لے کر اسی پر کتاب لکھی گئی ہے، تو وہ ایک ڈیپ نالج کا سورس ہے، تو وہ ایک ورٹیکل اپروچ ہے ہمارے پاس۔ اب ہم کوشچن 2 کی طرف موو کرتے ہیں کہ واٹ از رائٹ یا بگ کوشچن، واٹ از رائٹ اور بگ کوشچن۔ تو قرآن پاک میں سورہ الاعراف کی آیت 179 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے بہت سے جن اور انسان دوزخ کے لیے پیدا کیے ہیں، ان کے دل ہیں لیکن ان سے سمجھتے نہیں، ان کی آنکھیں ہیں مگر ان سے دیکھتے نہیں، ان کے کان ہیں مگر ان سے سنتے نہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ کریکٹرسٹکس کن لوگوں کی ہیں، یہ ان لوگوں کی ہیں، یہ لوگ بالکل چوپائیوں یعنی جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے۔ یعنی اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک ایسا تھاٹ لیس پرسن جو سوچنے اور سمجھنے کی بحیثیت انسان کو ایک صلاحیت تو رکھتا ہے لیکن اسے وہ کبھی استعمال میں نہیں لایا، تو وہ جانوروں کی طرح ہے، اسے انسان کے لیول پہ اللہ تعالیٰ نے خود نہیں رکھا۔ اس کے علاوہ ایک حدیث ہے ہمارے پاس، اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک اچھا سوال آدھا علم ہے۔
ان دونوں باتوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارا دین اسلام ہمیں خود سوچنے سمجھنے کی دعوت دیتا ہے، کیونکہ جب ہم سوچے سمجھیں گے تبھی تو ہمارا انٹلیکٹ اور آئی کیو ریز ہوگا۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ ان کے دل ایسے ہیں جن سے وہ سمجھتے نہیں، تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صرف برین ہی نہیں ہے جو کہ تھنکنگ کے پروسیس میں انوالو ہے۔ برین اور ہارٹ مل کر ایک ایسا کمپلیکس سسٹم بناتے ہیں جس سے ہم تھنکنگ سے ریلیٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں واٹ آر دا فیچرز آف رائٹ کوشچن۔ رائٹ کوشچن وہ ہوتا ہے جو صحیح جگہ، صحیح بندے اور صحیح ٹائم پر پوچھا جائے۔ پھر رائٹ کوشچنز آر لائک کیز ٹو اوپن بلاک چیمبرز آف آور برین۔ اس کا مطلب، اس کی ایگزامپل ہم لیتے ہیں کہ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے ڈفرینٹ نشانیاں ہمارے سامنے پیش کی ہیں، اور ان کو ہم ایز اے کیز لیں اور ہم ان پہ غور و فکر کر کے، تدبر کر کے ہم بہت سے علم کی طرف جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ رائٹ کوشچنز وہ ہوتے ہیں جو مزید پرابلم جنریٹ نہ کریں۔ مثال کے طور پہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت حاجرہ علیہ السلام کو مکہ میں چھوڑا تھا، تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ سوال کیا تھا کہ کیا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو حکم ملا ہے؟ اس ایک سوال نے حضرت حاجرہ کی پریشانی دور کر دی تھی، مزید انہوں نے پرابلمس کریٹ نہیں کیے تھے۔ حضرت ابراہیم کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوا تھا، وہ مطمئن ہو گئی تھی اس بات سے۔ پھر جو رائٹ کوشچنز ہوتے ہیں وہ ہیومینٹی کی بیٹرمنٹ کے لیے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ وہ کوشچنز جو موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے پوچھے۔ پھر ہم نے یہ دیکھا کہ ہمیں ایسے کوشچنز نہیں کرنے چاہیے جس پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا گیا ہے، جیسے کہ سورہ مائدہ کی آیت 101 میں اس بات کا ڈیٹیل میں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے کوشچنز پوچھنے سے منع کیا ہے جو شک و شبہات پیدا کریں یا جو امت میں اختلاف کا باعث بنتے ہیں، اور ایسے سوال جو خاص طور پہ عالم غیب سے متعلق ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ واٹ از دا پرپس آف آسکنگ بگ کوشچنز۔ تو بگ کوشچن وہ ہوتا ہے جو پرابلم سالور ہوتا ہے۔ تو ہمارے اس پوری دنیا کے کیا ایسی چیز ہے جو کہ اس پوری دنیا کے مسائل حل کر سکتی ہے، اور وہ ایک ہی ہے ہمارے پاس حل، اور وہ ہے اقامت دین۔ اب کوشچن نمبر 3 جو تھا، واٹ آر دا کانسیکوینسز آف ناٹ آسکنگ رائٹ کوشچنز۔ سب سے پہلا کانسیکوینسز تو یہ ہے کہ ہماری انڈرسٹینڈنگ لمٹ ہوتی ہے اور ہمارا نالج لمٹ ہوتا ہے۔ اس کی ایگزامپل میں دوں تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جتنے بھی سوالات اپنی روزمرہ کی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھے، اگر وہ نہ پوچھتے تو ہم بہت سے علم سے محروم رہ جاتے۔ اور اس کے علاوہ کوئی بھی امت اگر کوشچن نہیں کرے گی تو وہ اپنے مسائل کا حل نہیں ڈھونڈ سکے گی، اور ایٹ دی اینڈ ہم ایک مسلم امہ کے طور پہ ہم گرو نہیں کر سکیں گے۔ اور کنکلیوڈ میں اس بات پہ ہی کروں گی کہ جو اچھے سوالات کی ضرورت صرف اسی لیے ہوتی ہے کہ ہم ایز مسلم نیشن گرو کر سکیں، اور ہیومینٹی کی دیکھیں اور ہیومینٹی کے لیول پہ دیکھیں، اگر مسلمان نہ بھی ہو تو وہ اچھا کوشچن کرے گا تو وہ یقیناً جو اوریجنل نالج ہے جو کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آیا، وہ یقیناً اس کی طرف آئے گا۔ That was all from my side. Thank you so much. گریٹ پوائنٹس اسوا۔ آپ انمیوٹ ہی رہیے گا تاکہ ہم کویسچنس بھی پریزنٹیشن کے متعلق لے لیں۔ جی sure. اچھا، اب کسی کا بھی کویسچن ہے اگر جو پوائنٹس اسوا نے ریز کیے تو پلیز اپنا ہینڈ ریز کریں جن کا کویسچن اس پریزنٹیشن سے متعلق ہے۔ عائشہ C203، آپ انمیوٹ کر لیں and you can ask your السلام question. علیکم سر، میرا کوشچن نہیں ہے میری پریزنٹیشن میں، میں نے وہ ریڈ نہیں کیا تھا۔ شیر جان نائب، السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم پریزنٹیشن کے حوالے السلام۔ سے کوشچن یہ ہے کہ انہوں نے ایک آیت کا حوالہ دیا ہے قرآن کا کہ دل ہے مگر سمجھتے نہیں ہیں، تو اس آیت کا حوالہ دے دیجیے کہ کون سی سورہ اور کون سی ورس ہے۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ کہا گیا ہے کہ دل ان کے ہیں مگر سمجھتے نہیں ہیں، تو دل کا جو عربی لفظ ہے وہ قلب ہے، کیا یہاں پر قلب کی مراد ہمارا یہی دل ہے جو دھڑکتا ہے، جو بلڈ پمپ کرتا ہے؟ میڈیکلی یا سائنٹیفکلی اگر ہم دیکھیں تو دل کے پاس کیپیسٹی فقط یہی ہے کہ وہ بلڈ کو پمپ کرے،
اور اس سے زیادہ اگر ہے تو اس کے پاس سمپیتھٹک یا پیراسمپیتھٹک یعنی فائٹ اور فلائٹ والا تھوڑا سا اس کے پاس موجود ہے سسٹم کہ وہ ریئیکشن یعنی ایکشن کے بدلے جو ہارٹ ہے وہ ریئیکشن دیتا ہے. لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اس کے اندر کوئی نروز یا نیورون ٹائپس کا کوئی وہ نہیں ہے جس کے اندر انفارمیشن کوئی پروسیس ہو سکے. تو دل سے سمجھنے سے قرآن کی کیا مراد ہے, اس کے اوپر تھوڑی ایکسپلین کیجیے. شکریہ. جی میں آئی آنسر. جی جی گو ہیڈ. جی جو ان کا پہلا کوشچن تھا کہ ریفرنس بتا دوں, وہ سورہ الاعراف کی آیت 179 ہے. اور جو دوسرا کوشچن ہے کہ دل کس طرح سے انوالو ہے, یہ وہی دل ہے جس کو عربی میں قلب کہا گیا ہے. اور دل کس طرح سے انوالو ہے کہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس کچھ ایسے ہارمونل کنٹرولز ہوتے ہیں جو کہ جب ہم کوئی چیز دیکھتے ہیں تو پہلے دل انالائز کرتا ہے, اس کے بعد جب پروسیسنگ کی باری آتی ہے تو وہ جو ہے وہ برین کے پاس جاتا ہے سسٹم. اس طرح یہ دونوں چیزیں مل کے ورک کرتی ہیں. ایک کوشچن ہم اور لے لیتے ہیں. جی فیروز سے خالد, آپ کوشچن السلام پوچھ علیکم. لیں. وعلیکم السلام. میں نے تھوڑا سا یہ جو میڈم نے آنسر کیا نا اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا. جی جی میں اصل میں خود فارماسسٹ ہوں اور اس کے بعد میں نے مالیکولر بایولوجی میں ایم فل بھی کیا, تو میں نے تھوڑا سا نا ہارٹ کو ڈیٹیل اسٹڈی کیا. تو اگر ہم جو جرنلز ہیں نا ریکگنائزڈ ان کے اندر پڑھیں گے نا تو ہارٹ کے اندر تھنکنگ کیپیسٹی ہے اور برین لائک جنکشنز ہیں تھوڑے سے. جی جی ہلو. جی جی ہمیں آواز آ رہی ہے, بولیے. جی جی میں یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ اگر جو ریکگنائز جرنلز ہیں نا ان کے اندر ہارٹ کا جو انیٹمی اور جو اسٹرکچر ہے اس کو اسٹڈی دوبارہ کریں نا تو اس کے اندر کچھ جنکشنز ہیں ہارٹ کے اندر جو بالکل برین لائک اسٹرکچرز ہیں اور کچھ نیورونز بھی ہیں. میرے ذہن میں ابھی ان کے نا ایگزیکٹ نام نہیں آ رہے, میں نے یہ کافی پہلے 5-6 سال پہلے پڑھا تھا تھوڑا سا. تو میں اس میں تھوڑا سا یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ دل سوچتا ہے لیکن ابھی سائنس وہاں تک پہنچی نہیں ہے شاید. اوکے تھینکس الاٹ. جی ہم ایک کوشچن اور لے لیتے ہیں پریزنٹیشن پہ. عروج C67 C51 آپ انمیوٹ کریں. جی عروج آپ کا کوشچن ہے. عروج آپ انمیوٹ ہیں, یو کین آسک یور کوشچن. کسی اور کا اگر کوئی کوشچن ہے, بیکاز باقی جو ہینڈ ریز ہیں وہ سب پریزنٹرز ہیں. معاذ آپ کوشچن پوچھ لیں. عروج کے مائک میں کوئی ایشو ہے, انمیوٹ کیجئے. ہاں السلام علیکم. وعلیکم السلام. کویسچن نہیں ہے, بس تھوڑا پوائنٹ ایڈ کرنا تھا. ہارٹ جو ہے نا آکسیجن پمپ کرتا ہے اور برین ہمارا 20% آکسیجن یوز کرتا ہے. although according to body weight صرف 2% کا ویٹ ہے لیکن 20% آکسیجن یوز کرتا ہے. بنا آکسیجن کے برین ہی چلے گا ہی نہیں بالکل. تو دا ویری ایسنس آف لائف جو بلڈ ہے جس میں ہیموگلوبن ہے آکسیجن کیری کرتا ہے, that's pumped all along the body, all over the body by the use of heart. تو ایسے بھی دیکھ سکتے ہیں ہم اس بات کو, بس یہ ایڈ کرنا تھا بس. اوکے عدنان ریاض آپ کا اگر کوئی کوشچن ہے تو پوچھ لیں. If somebody has a question, please presenter سے کوشچن پوچھ لیں. کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی عدنان
Go ahead. मेरा क्वेश्चन तो नहीं है, मैं 2 हदीसें ऐड करना चाहता हूँ, अगर आप एक मिनट फिर आप लाइन पे रहें. लेट मी गिव समवन एल्स चांस, ताकि अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो भी सामने आ जाए, कोई बात क्योंकि नहीं. एट द एंड हमारे पास डिस्कशन तो होगा ही. मोहम्मद, आप अनम्यूट कर लीजिए. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. आपका कोई क्वेश्चन है इस प्रेजेंटेशन जी. से रिलेटेड? जी पूछिए. सॉरी, प्रेजेंटेशन मैंने नहीं कंप्लीट सुनी, मैंने अभी ज्वाइन किया. असल में मेरा नफ्सियात से मुतल्लिक जो है ना, ये दिल और दिमाग के मुतालिक एक क्वेश्चन है, तो उस हवाले से पूछना चाहूँगा. मैं ये समझना इसका चाह रहा हूँ. प्रेजेंटर से अगर आप पूछना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने जो प्रेजेंटेशन दी है वो उसी के मुतालिक आपको जवाब दे पाएंगे. तो अगर किस उससे हवाले से? रिलेटेड है मुझे क्वेश्चन बस तो सिर्फ तब सिंपल. प्लीज पूछिए. अदनान, आप बेशक ऐड कर लें अब अपने पॉइंट. आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी बोलिए. जी, अल्लाह के नबी हमेशा क्या नाम अल्लाह ताला से एक दुआ मांगा करते थे, या मुकल्बिल कुलूब सब्बित कल्बी अलैहि दीनिका, और चेंजर ऑफ द हार्ट्स मेक माय हार्ट अपॉन योर रिलीजन, कि दिलों के बदलने वाले मेरा दिल अपने दीन पे कर दें. और एक मर्तबा अल्लाह के नबी ने एक सहाबी को कहा कि अल्लाह के सहाबी ने पूछा अल्लाह के नबी से, अगर मैं ऐसी जगह पहुंचा हूँ जहाँ कुछ भी ना हो, तो मुझे कैसे मालूम करूं कि ये राइट है कि रॉन्ग है? तो अल्लाह के नबी ने कहा कि अपने दिल से पूछ लीजिए. तो दिल भी सोचने की कैपेसिटी रखता है, और दिल हमें डायरेक्ट करता है राइट और रॉन्ग वे की तरफ. और एक डॉक्टर नफीसा शाह साइकोलॉजिस्ट हैं, तो उन्होंने इस पे पूरी वीडियो भी बनाई है, तो उन्होंने कंप्लीट गाइड किया कि दिल कैसे सोचता है और क्या पैरामीटर्स हैं. तो ये मैं ऐड करना चाह रहा था. ठीक है. आई गेस वी इनफ क्वेश्चंस. हम नेक्स्ट प्रेजेंटेशन पे मूव कर सकते हैं. बहुत बहुत शुक्रिया उसवा. ओके, नेक्स्ट ग्रुप हमारे पास है C20 C228 मलिक. आप अनम्यूट कीजिए. अस्सलाम वालेकुम. मेरी आवाज़ आ रही है? वालेकुम सलाम. जी आपकी आवाज़ आ रही है. आपको स्क्रीन शेयरिंग चाहिए? अच्छा, नहीं. ओके. अच्छा, हमारा जो आज की प्रेजेंटेशन है ना, ये सवालात के मुताल्लिक है. तो जो सवालात है ना, वो हमारी प्रोग्रेस के लिए, एवोल्यूशन के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं. इससे हमें ना डायरेक्शन मिलती है किसी सिमत में जाने के लिए, और नए से नए तजर्बात, मुशाहदात और हक़ाइक़ जानने के लिए. तो इसमें हमारा सबसे पहला सवाल था कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल क्वेश्चंस. तो हॉरिजॉन्टल सवालात इस तरह के होते हैं जिसमें हम वसी और तफसीली मालूमात हासिल करना चाहते हैं, और किसी मौजू के ऊपर वसी तहकीक के लिए हम वो सवालात पूछते हैं. और जो वर्टिकल क्वेश्चन होते हैं वो उन्हीं सवालात के अंदर, जब हमने इंटेरोगेशन करनी होती है और हमने स्पेसिफिक डिटेल्स निकालनी होती है, जिसको टारगेटेड डिटेल कहते हैं, तो उस वक्त हम वर्टिकल क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं. वर्टिकल क्वेश्चन को एक प्लेटफॉर्म देते हैं, जिसकी मिसाल आप इस तरह कर सकते हैं कि अगर हमने जानना है कि पाकिस्तान की तरक्की ना करने के असबाब क्या हैं, तो ये एक हॉरिजॉन्टल क्वेश्चन हो जाता है जो एक वसी पैमाने पर फैल जाता है. फिर उसमें हम मुख्तलिफ ब्लॉक्स में जाते हैं, मुख्तलिफ सोसाइटीज़ में जाते हैं. वहाँ पे हम जाके स्पेसिफिकली किसी पर्सन से या ग्रुप ऑफ पीपल से जब हम क्वेश्चनिंग करते हैं और अपने मतलूबा हदफ को निशाना करते हैं, तो वो वर्टिकल क्वेश्चन में आ जाता है. तो इसको हम मतलब इस तरह भी कह सकते हैं कि वर्टिकल सवालात इनफरादी तजर्बात या एहसासात या राय या ज़ाती इंसाइट पर तवज्जो मरकूज करते हैं, और एक शख्स के मुताबिक बनाए जाते हैं या एक ग्रुप के मुताबिक, मतलब जो स्पेसिफिकली हमने एक टारगेट रखा होता है वहाँ से उसको हम डिग करते हैं. और
जो हॉरिजेंटल सवालात होते हैं वो अमूमी तौर पर जनरल एंड ऑब्जेक्टिव होती हैं, मतलब उसमें हमारी कोई कैद नहीं होती, वहाँ पे हम एक वसी प्लेटफॉर्म की तरफ निकलते हैं जिसमें हम मुख्तलिफ अपने ऑब्जेक्टिव्स रख के तो फिर उनकी तरफ बढ़ते हैं। तो इसके बाद हमारा अगला इसका क्वेश्चन है कि आस्किंग द राइट एंड बिगर क्वेश्चन। तो इसमें मतलब आज की जो तेज रफ्तार दुनिया, तो इल्म आसानी से काबिल रसाई है, तो सही सवाल पूछना ना बहुत अहम है, जिससे मतलब हकीकी तजस्सुस पैदा हो, अजीम कोई बड़ा सवाल हो, मालूमात के वसी समुंदर तक मतलब हम पहुंचना चाहते हैं और हमें बामैनी मीनिंगफुल इंसाइट की तरफ जाना हो, इससे हमारी मतलब ज़ाती तरक्की को भी फ़रोग मिलता है और दूसरों के साथ जो हमारे ताल्लुकात होते हैं और एक मसरूफ़ ज़िंदगी गुजरती है। तो इसको मतलब इस तरह भी हम कह सकते हैं कि अगर हम जितना मसरूफ़ होंगे उतना ज़्यादा हम बुराइयों से भी बच सकते हैं, क्योंकि हमारी ज़िंदगी एक पर्पस की तरफ लग जाती है, तो हमें एक अलाइनमेंट मिल जाती है। तो इस सही सवालात के अंदर कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिनको हम हमने देखना होता है। मिसाल के तौर पे सही सवालात की नोयत, तो सही सवालात की नोयत से मुराद ये है कि जो हमारे हकीकी तजस्सुस, मतलब एक इंसान का अपने आप से पूछना, अपने पर्पस जिसको हम कहते हैं, हमने अपना पर्पस ढूंढना है, तो वो सवालात ऐसे होते हैं कि जो वो सही सवालात होते हैं जिससे हम अपना पर्पस अलाइन करते हैं और हमें वो जिंदा रखता है, हमें मतलब वो हरकत में रखता है। और ये सवाल जो होते हैं ना, ये ऑनेस्टी से होते हैं, मतलब हम अपने आप से मुखलिस होकर पूछते हैं कि यार हम क्या कर रहे हैं। तो इससे जो है ना, हम अपने इर्द गिर्द को मुनज़्ज़म करने में मदद देते हैं और हम मतलब गहराइयों में जाते हैं और हमारी जो समझ से बाहर की चीज़ें होती हैं ना, उनको दरियाफ्त करने की कोशिश करते हैं। तो ये बेसिकली सही सवालात एक पर्पस को अलाइन करने, आप कह सकते हैं कि हमें किसी समत में जाना चाहिए। इसी तरह सही सवालात में ना बच्चों के एक क्यूरियोसिटी, तजस्सुस जो होता है, तो नॉर्मली होता ये है कि बच्चे जब सवालात पूछते हैं ना, तो वो उनके सवालात का मतलब ये नहीं होता कि बड़ों को वो बड़ों को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि वो अपने जो उनके अंदर प्यास लगती है ना, बच्चा जब कोई चीज देखता है तो उसको जानने की कोशिश करता है, तो उसके अंदर एक तजस्सुस पैदा होता है। तो उस तजस्सुस से वो बड़े बड़े सवालात की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। तो जैसे जैसे मतलब वो हम बड़े हो रहे होते हैं, तो अगर हम इस तजस्सुस को मतलब बच्चों से सवालात करना, उनके जवाबात देना छोड़ दें, तो वो सही सवाल पूछने की सलाहियत जो होती है ना, वो मुतासिर हो जाती है, जिसकी वजह से गुमराही की तरफ भी इंसान निकल जाता है। और इल्म का वहम एक इसमें मतलब द इल्यूजन ऑफ नॉलेज, ये इस तरह आप इसको ले सकते हैं कि हम जब बड़े होते हैं ना, तो हमारे अंदर एक वहम सा पैदा हो जाता है कि हम सब कुछ जानते हैं। मलिक, सॉरी टू इंटरप्ट, आपका टाइम पहले ही ऊपर जा चुका है, तो इफ यू कुड प्लीज रैप अप। चल मैं ठीक है। अच्छा, तो इसमें मतलब इल्म का वहम होता है, फिर तजस्सुस के साथ जुड़ना, फिर मतलब नामालूम का पता लगाना, जो हमें चीज़ें पता नहीं होती, फिर फिक्र अंगेज सवालात तैयार करना, मुज़िका हेजी को अपनाना। मुज़िका हेजी से मुराद ये होता है कि बेतुका कोई सवाल कर देना, जैसे वो एक सेब गिरा था तो उसने न्यूटन ने वहां से जो है वो अपने निकाल लिए सवालात कैसे गिर गया। तो इसी तरह कॉन्सिक्वेंसेस में आ जाता है। कॉन्सिक्वेंसेस में हमारी ज़ाती तरक्की और वजूद की अक्कासी जो होती है ना, वो मुतासर होती है। और उसके अलावा हमारे जो है ना मसाइल, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड इनोवेशन, इसमें ये मुतासर होती है। अगर हम सही सवालात नहीं करेंगे तो हम प्रोग्रेस की तरफ नहीं जाते। जिसकी आप मिसाल पाकिस्तान, हम मतलब आज भी 75 साल में यही कह रहे हैं कि मसला क्या है, तो सवालात, सही सवालात हम करते ही नहीं हैं। तो इसी तरह बाहमी तल्लुकात, मतलब हम अपने आपस के जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होती है, वहाँ पे भी हम एक दूसरे के साथ उस तरह के तल्लुकात नहीं इस्तवार रख पाते, जिसकी वजह से वो तमाम
मसाइल पैदा होते हैं, और इसके बाद समाजी तरक्की, मतलब सोसाइटिकल प्रोग्रेस और साइंसी दरियाफ्तें। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि सवालात जो होते हैं ना, वो हमारे ब्रेन को एक डायरेक्शन देते हैं, जिससे हम अपने मसाइल और अपने इर्द गिर्द से जुड़े मसाइल और चीज़ों को जानने की तरफ निकलते हैं। तो ठीक है, मेरा टाइम ऑलरेडी अप हो गया, तो मुख्तसर सा तो यही था। अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो हैंड रेज कर लें इनके पॉइंट से रिलेटेड। रिजवान। मेरा सवाल ये है कि अभी इस वक्त मुस्लिम उम्मा के बिगर क्वेश्चंस क्या हैं, वो क्या क्वेश्चन करे ताकि वो स्टैंड अप हो सके? मेरा ख्याल है इसका मुख्तसर सा जवाब तो ये होना चाहिए कि क्या हम मुसलमानों वाले काम कर रहे हैं। ओके, कोई और इस पे कुछ ऐड करना चाहे? फरहाना, इफ यू वांट टू ऐड, ताकि उनको थोड़ी क्लैरिटी मिल जाए। Assalamu alaikum. This is Farhana Kurtalain, one of your coordinators. Jazakallah khairan, Brother Malik, for your presentation. So, subhanallah, again, bigger questions. Itna bada, as the word says, it's such a very important thing. So, badi question mein, you can take it all the way, you can zone out and you can zoom out, and you can take it all the way to, who you are, you can start from there. And as once you discover who we are as Muslims, we are the Abd of Allah subhanahu wa ta'ala. Then as Brother Malik said, the next question would be, hum isme kitna sahi kar rahe hain, how much are we iski haq hum kitna ada kar rahe hain. That will be our definitely a first question. That is our individual level. फिर अब इसको ना अब उम्मा की तरफ लेके जाएं, तो अगेन यू वांट टू लुक एट द कलेक्टिव उम्मा एंड सी कि हम इसमें हाउ मच आर वी डूइंग, कि कितने इसका हक हम कितना अदा कर रहे हैं. So they definitely will be our big question. और उसके बाद then you want to start digging in and find out the reasons. If we are not doing जितना हमें करना चाहिए उतना नहीं हो रहा, तो then we start doing the vertical questioning and trying to find out the reasons. So subhanallah, as Muslims, this is the entire purpose of our life. So the biggest question will be related to your your sense of your life. Jazakallah khairan. Okay. Do we have anyone else? I guess Faik भी है, इन्होंने भी पहले से हैंड रेज किया हुआ है. Yes. Go ahead, Brother Faik. आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं? Faik, you can unmute. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. जी, आप क्वेश्चन पूछिए अपना. जी मेरा क्वेश्चन ये है कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमारा क्वेश्चन राइट है कि नहीं, क्योंकि मैंने अभी तक जो पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग के क्वेश्चन कांट बी आंसर ट्रू और फॉल्स, तो इसके अंदर मुझे थोड़ी गाइडेंस चाहिए थी. जी मलिक, आप जवाब देना चाहेंगे? नहीं, मुझे जरा इनके सवाल की समझ नहीं आई. इन्होंने वर्टिकल के बारे में पूछा या हॉरिजॉन्टल के बारे में? इन्होंने पूछा है कि कहा जाता है कि हर क्वेश्चन, एवरी क्वेश्चन इज अ राइट क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन गलत नहीं होता. तो कह रहे हैं हमें कैसे पता चलेगा कि राइट क्वेश्चन फिर कौन सा है? इसमें राइट क्वेश्चन कौन सा है, इसको हम इस तरह देख सकते हैं कि जैसे हमारे जैसे ये अब देखते हैं कि ओके, चले, नो इशू. अब इसकी कोई स्पेसिफिक मिसाल मुझे कोई ज़हन में नहीं आ रही, लेकिन मैं ज़रा होल्ड पे हूँ, मैं दे देता हूँ. ओके, देखें, राइट क्वेश्चन अगर आप आसान लफ्ज़ों में इसको समझना चाहें तो वो होगा जो कोई बड़ा मसला हल कर रहा है या कोई बड़े प्रॉब्लम का सलूशन दे रहा है. बिगर क्वेश्चन या राइट क्वेश्चन वो है जो आपको राइट डायरेक्शन में लेके जाएगा किसी भी एक सलूशन की तरफ. तो जो बेसिक चीज़ है, या कही जाती कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं है, लेकिन ठीक है क्वेश्चन गलत नहीं है, लेकिन सही क्वेश्चन कौन सा है? सही क्वेश्चन वो होगा जो आपको किसी न किसी बड़े मसले की निशानदेही कर रहा है
جس کے سولوشن سے زیادہ لوگوں کو فائدہ ہو سکے. کہ فرحانہ if you want to add something. No, mashallah, well said, Brother Hassan. Yeah, exactly. آپ کا جو again purpose کی طرف لے جا رہا ہے اور as Muslims again if you put Muslim perspective جو بھی question اس نیت سے پوچھا جائے کہ اللہ کو کس طریقے سے پلیز کرے, that is going to be right question اور اس کا solution دے, that's exactly what it is. جزاک اللہ. Okay, next presentation is by Mustafa. Mustafa, آپ unmute کی. Yes. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کو اسکرین شیئرنگ چاہیے مصطفیٰ؟ یس اسکرین شیئرنگ چاہیے. جی, now you can share. جی ہاں, we can see your screen. You can start. بسم اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. انڈرسٹینڈنگ آج کے جو ٹاپک ہے ہمارا ذہنی اور فکری جنگ کی اس امبریلا میں اگر بگر کوشچنس کو دیکھا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ذہنی اور فکری جنگ جیتنا ناممکن ہے جب تک ہم بگر کوشچنس اور رائٹ کوشچنس کے جوابات کو گلوبل لیول پر سولو نہ کر سکیں. ہمیں بگر کوشچنس بینگ اے مسلم کمیونٹی ہمیں بگر کوشچنس کے جوابات کو ڈھونڈنے ہوں گے. ہمیں اگر دنیا کو انفلوئنس کرنا ہے اور ایز اے مسلم کمیونٹی تو پوری دنیا کے پرابلمس کو سالو کرنا ہوگا. آج ویسٹ جو ہے, ویسٹ یورپ سپیریئر کنڈیشن میں کیوں ہے, سپیریئر کیوں ہے؟ کیونکہ وہ گلوبل لیول کے سوالات کے جوابات ہمیں دے رہے ہیں. وہ فکری جنگ ہم سے کیوں جیت چکے ہیں؟ کیونکہ وہ گلوبل لیول کے پرابلمس کو سالو کر رہے ہیں. اور آئی فاؤنڈ کہ وہ 7.8 بلینس آف پیپلس کے جو ہے نا سوالات کے جوابات دے رہے ہیں. آج ہم میڈیکل سائنس کی بات کریں تو میڈیکل سائنس کے جو پرابلمس ہیں, آج کل کے جو ماڈرن ٹیکنالوجی ہے, ان کے جوابات ہمیں ویسٹ کی طرف سے آ رہے ہیں. اور جبکہ اللہ کریم کی سب سے موسٹ ایڈوانس بک ہمارے ہاتھ میں, اور ہم ان کے جوابات نہیں دے پا رہے ہیں. ہم ان بگر سوالات کو سوچنا تو دور بات, ان کو سمجھتے تک نہیں ہیں. تو یہی وجوہات ہے کہ ذہنی اور فکری جنگ میں ہم بہت پیچھے ہیں, اور یہی وجوہات ہیں کہ ہم دنیا کو, گلوب کو انفلوئنس نہیں کر پا رہے. بات کی جاتی ہے کہ گلوبل کوشچنس کیوں ضروری ہے اور کس طرح سے ہم اگنورنٹ کنڈیشن میں آج ویسٹ اور یورپین یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس کی اگر بات, جب ان کی ڈبیٹ کی بات ہے تو وہ گلوبل لیول کے سوالات کے اوپر فکر اور ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں اور ان کے سوالات کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. اور اسی کے برعکس پاکستان کی بات کی جائے یا ایشین مسلمس کی بات کی جائے تو ان کے سوالات اور ان کی سوچ, ان کا لیول آف ایس لیول کا ہوتا ہے کہ وہ ان کے سوالات بھی ایسے ہوتے ہیں, ان کی ڈسکشن لیول ہوتا ہے کہ آج کون سا میچ ہے, آج کے دن کس ٹیم کا میچ ہے, یا پھر مثال کے طور پر عمران خان کی کوئی وائس نوٹ لیک ہوئی ہے, یا پھر ایسی فضول قسم کے ہمارے سوالات ہوتے ہیں, ہمارے کوشچنس ہوتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں ان کے لیول آف ڈگری بتا رہے ہوتے ہیں. تو آج ویسٹ اور یورپ اس لیے کیونکہ وہ اس لیول پر ہے, وہ ایک سپیریئر کنڈیشن ہے کیونکہ وہ گلوبل لیول کے کوشچنس ڈھونڈ رہے ہیں اور ان کے جوابات بھی دے رہے ہیں. اور اگر ایز اے مسلم کمیونٹی ہمیں انٹلیکچوئل سپیریئر بننا ہے اور ایز اے پولیٹیکل اسٹرانگ نیشن بننا ہے تو ہمیں انٹلیکچوئل سپیریئر بننا ہوگا, اور ان سارے سوالات کے جوابات دینے ہوں گے جو گلوبل لیولس کے پرابلمس ہیں. نہ صرف مسلمان, نہ صرف پاکستان, نہ صرف ہندوستان, ہر پوری دنیا کے پرابلمس کے جوابات کا آنسر ہمیں دینا ہوگا اور ڈھونڈنا پڑے گا. اور جبھی ہم لوگوں کو انفلوئنس کر پائیں گے, اور یہی سائیکولوجیکل وار ہے, انٹلیکچوئل وار ہے. کہ اللہ تعالیٰ کی قرآن مجید اور موسٹ ایڈوانس بک ہمارے ہاتھ میں, اس کے باوجود ہم اتنے پیچھے ہیں. وجوہات یہ ہے کہ یہی وجوہات ہے جس کی وجہ سے ہم انٹلیکچوئل وارفیئر جیت نہیں پا رہے ہیں. جب تک ہم انفلوئنس نہیں کریں گے, جب تک ہم اپنی دنیا میں, مسلم دنیا میں اور ایز اے گلوب مسلم آئیڈینٹیفیکیشنس کو جو ہے آئیڈینٹیفائی نہیں کر پائیں گے, اور نہ ہی ہم یہ ڈبیٹ اور نہ ہی یہ جنگ جیت پائیں گے. بات کی جائے مسلمانوں کی, مسلمان تو اپنی مسلم آئیڈینٹی کی جو ہے کیا نام ہے ایکسیپٹ نہیں کر رہا ہوتا, تو گلوبل کوشچنس کی کو ڈھونڈنے میں کی طرف تو دور ہی بات ہے. وجوہات یہی ہے کہ ہم ان لیولس کے اوپر سوچتے نہیں ہیں. بات کی جائے کہ کون سے سوالات درست ہیں, کون سے رائٹ کوشچنس کی بات, جیسے کہ ابھی ایک ہوسٹ نے بھی بتایا کہ کوئی سوال غلط نہیں ہوتا, اور وجوہات یہی ہے کہ سوال صحیح کون سا ہوتا ہے, اس بات کے اوپر بات کی جائے. اور سم ٹائمز ہم کہتے ہیں کہ یار یہ کیا بچوں والا سوال ہے, یا پھر ہم بچوں سے کہتے ہیں کہ چائلڈش کوشچنس آپ پوچھ رہے ہیں.
इन माय पर्सपेक्टिव बच्चे पूछते हैं फलसफे के सवाल हैं और उनकी बातों में इतना फलसफा पाया जाता है, वो पूछते ही ऐसी बातें हैं, तो उनकी बातों को भी जो है हम क्या नाम है निगलेक्ट नहीं कर सकते और उनके सवालात को भी हम छोटा या किसी रॉन्ग नहीं समझ सकते। अब बात की जाए जैसे कुरान मजीद में अल्लाह ताला चैप्टर नंबर 18 सूरह मोमिनून में फरमाते हैं कि कद अफ़लहल मुमिनून वल्लज़ीना हुम मिन सलातिहिम खाशिऊन वल्लज़ीना हुम लग़वी मुरदून, अपने आप को वो लगवियात से दूर रखते हैं, बेन टॉक से दूर रखते हैं। तो वजूहत ये है कि अगर वो सवालात बेन टॉक है, फजूल है, उसका मकसद दुनिया व आखिरत में नहीं है, तो वो सवालात फजूल ही हैं और ऐसी डिस्कशन और ऐसे आर्गुमेंट, ऐसे क्वेश्चन फजूल हैं। तो रही बात हम समटाइम्स स्टूडेंट्स को कहते हैं डोंट आस्क, ऐसे सवालात ना पूछिए, या फिर टीम के बारे में हम ऐसे कहते हैं कि काइंडली इस तरह के सवालात ना पूछें, इजाजत नहीं है। तो मैं तो समझता हूँ कि हम स्टूडेंट्स को इस तरह से डिग्रेड कर रहे होते हैं, चैनलाइज नहीं करते, हमें चैनलाइज करना चाहिए। अगर हमारे पास इल्म नहीं है तो हम उस स्टूडेंट्स को ऐसे उस टीचर्स की तरफ चैनलाइज करें या कुरान मजीद की तरफ, ऐसे स्कॉलर्स की तरफ, जो वो सवालात के जवाब, चाहे वो दुनिया के हों या आखिरत के हों। आज इंटरगैलेक्टिकल क्वेश्चंस हों या फिर दुनिया के मसाइल हों या फिर निजी मामलात हो, वेस्ट दे रहा है ना कि मुसलमान दे रहा है। अगर इन सारे सवालात के जवाब मुसलमान दे रहा होता तो वो इंटेलेक्चुअल सुपीरियर होता। और बात की जाए इस बैटल की, इस बैटल को किस तरह से लड़ा जाएगा और इन सवालात के जवाब कैसे ढूंढे जाएंगे, तो नबी अलैहिस्सलाम ने आज से 1450 साल पहले ये इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर लड़के दिखाई है। उन्होंने अपना एक क्लस्टर बना के दिखाया है, उन्होंने भी जीरो से स्टार्ट किया था। तो वी जस्ट हैव टू स्टार्ट विद द जीरो। और हमें क्या करना है, हमें क्या करना होगा इस जंग में बीइंग अ मुस्लिम कम्युनिटी, इन बड़े सवालात को, पहले प्रॉब्लम को समझना होगा कि प्रॉब्लम है, बिगर प्रॉब्लम को अंडरस्टैंडिंग करनी होगी और अंडरस्टैंड करने के बाद उसको रिकॉग्नाइज करना होगा। हमने बस यही काम करना है, लोगों को अल्लाह तक पहुंचाना है। और लोगों को अल्लाह तक इस तरह से पहुंचाएंगे कि पूरी ग्लोबल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो लोगों को इन्फ्लुएंस करना होगा, रिकॉग्नाइज करवाना पड़ेगी अपनी मुस्लिम आइडेंटिटी। वो मुस्लिम आइडेंटिटी इस तरह से रिकॉग्नाइज होगी जिस तरह से हम लोगों को ग्लोबल लेवल के उनके सवाल प्रॉब्लम्स के जवाब दे देंगे। आज ग्लोबल लेवल के प्रॉब्लम्स के जो जवाब हैं वो इस तरह से दे रहे हैं। मेडिकल साइंस में भी कोई अंग्रेज होता है जो हमें हमारे प्रॉब्लम्स के जवाब दे रहा होता है। अगर इन्हीं प्रॉब्लम्स के जवाब को कोई मुसलमान देगा तो उसी तरह से हम उनसे इन्फ्लुएंस कर पाएंगे। नबी अलैहिस्सलाम ने ये करके दिखाया और ये बीइंग अ मुस्लिम कम्युनिटी वी हैव टू डू द सेम। जिस तरह से अल्लाह ताला भी कुरान में कहते हैं कि अब सवाल ये पैदा होता है कि स्टार्ट कहाँ से करें। अल्लाह ताला कहते हैं ईमान वालों तुम अपने आप को और अपने घर वालों को आग से बचाओ। तो वजूहत यही है कि हमें स्टार्ट अपने आप से करना है, अपनी ज़ात से करना है। हर इंसान अपने ज़ात में एक खलीफा है, अपनी ज़ात को पहले बेटरमेंट की तरफ लेके जाए, फिर अपने घर वालों को। नबी इस्लाम ने भी ये किया था, अपने घर से स्टार्ट किया था, खदीजा और अली बिन तालिब से स्टार्ट किया था। वो जस्ट हैव टू स्टार्ट। हमें भी यही देखना कि हमारे घर में खदीजा कौन है, हमारे घर में अली बिन तालिब कौन है। तो स्टार्ट योर ऑन क्लस्टर। नबी इस्लाम जैसे कि साहिल साहब भी कहते हैं कि नबी इस्लाम उन ऐसे लोगों पर मुस्कुराएंगे नहीं, नबी इस्लाम उन लोगों के ऊपर उनको देख कर मुस्कुराएंगे रोज़ महशर जिनका क्लस्टर होगा। बिकॉज हम नबी इस्लाम की उम्मत ही है और हमारा तो मिशन करोड़ों और लाखों में होना चाहिए था। हम अपने अपना कैसे देखने लग गए, अपनी ज़ात को सिर्फ अपने आप को बचाने थोड़ी नहीं आए। हम बीइंग अ मुस्लिम कम्युनिटी पूरी दुनिया की उम्मत को बचाने आए अलग। तो दैट्स द मेन रीजन, यही इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर है। फिर इसी टॉपिक के इसी टास्क 6 का कुछ सवालात है कि सवालात की नोयत किस तरह से होती है। जैसे कि अभी काफ़ी स्पीकर्स ने भी बताया कि दो तरह के सवालात होते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। इसमें ज़्यादा मैं डीप नहीं जाऊँगा क्योंकि काफ़ी चीज़ें आया हैं। हॉरिजॉन्टल क्वेश्चन की बात की जाए तो ऊपर सतह के सवालात होते हैं। अब सवालात हमें पूछने हैं और क्योंकि सवालात पूछेंगे तो सवालात को अंडरस्टैंडिंग होगी और सवालात की अंडरस्टैंडिंग होगी तो हम ग्लोबल लेवल के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे। तो हॉरिजॉन्टल क्वेश्चन जो है ऊपर सतह के सवालात होते हैं, बेसिक लेवल की इंफॉर्मेशन होती है जिसमें हम अंडरस्टैंड करते हैं पूरे स्पेसिफिक ओवरव्यू को किसी भी सवालात के ब्रॉडर फोकस में और मल्टीपल डायमेंशंस उसको देख रहे होते हैं। इस तरह से एकदम बेसिक इंफॉर्मेशन, मिसाल के तौर पे एक प्लैनेट है, जुपिटर है, लेट्स सपोज। सबसे बड़ा प्लैनेट दुनिया में कौन सा है, कोई सोलर सिस्टम में कौन सा, तो जुपिटर। ये बेसिक लेवल का इंफॉर्मेशन है, ये ऊपर सतह का सवाल है जिससे कि ये हॉरिजॉन्टल क्वेश्चन में आता है। कुरान मजीद में भी अल्लाह ताला सूरह आराफ में अल्लाह ताला हमसे एक हॉरिजॉन्टल क्वेश्चन पूछते हैं। बड़ा इमोशनल क्वेश्चन है जो कि मैं समझता हूँ कि अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ। तो ये सवाल बड़ा हॉरिजॉन्टल क्वेश्चन किस तरह से अल्लाह ताला हमसे पूछ रहे हैं कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ। हम सब ने ये जवाब दे दिया, भला यार आप ही हमारे रब हैं। उसके जवाब में उलमा कराम कहते हैं कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि फिर भी फाइन तज़हबून, तो फिर तू कहाँ जा रहा है। क्या कोई है जो तुझे मुझसे ज्यादा मोहब्बत करता है, या कोई है जो तुझे मुझसे ज्यादा रिस्क अता करता है। जो फरिश्ते तेरे अमाल मेरे पास लेके आते हैं वही उन्हीं फरिश्तों के साथ मैं तुम्हारे रिस्क रोज की बुनियाद पे भेजता हूँ, फिर तो तू कहाँ जा रहा है। तो ये एक हॉरिजॉन्टल क्वेश्चन जो कुरान मजीद अल्लाह ताला हमसे पूछते हैं
फिर एक और सूरह इंफितार की आयत नंबर 6 में अल्लाह ताला फरमाते हैं या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। ये भी एक हॉरिजॉन्टल क्वेश्चन है, वो किस तरह से है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ए इंसान, मुसलमान या हिंदू या कोई क्रिश्चियन या ईसाई नहीं का, एथियस्ट नहीं का, ए इंसान का है पूरी कायनात। ए इंसान, तुझे तेरा रब करीम से किस चीज ने धोखे में डाल दिया है? कौन सी वो चीज है? इंसान अपने आप से पूछे कि वो कौन सी चीज है जो इंसान को धोखे में डाल रही है। चाहे वो नेटफ्लिक्स है, वो पोर्नोग्राफी है, वो सोशल मीडिया है, कोई दोस्त है, कोई हराम रिलेशनशिप है। इंसान अपने आप से ये सवाल करे कि वो कौन सी वो चीज़ है जो इंसान को अल्लाह से दूर कर रही है। तो ये हॉरिजॉन्टल क्वेश्चन है। ये इस बात का जवाब इंसान को पता है कि वो कौन सी चीज़ है। दैट्स द मेन रीजन। ये वर्टिकल क्वेश्चन नहीं, ये हॉरिजॉन्टल क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, क्योंकि प्रेजेंटेशन का टाइम पीरियड को भी देखते हुए कंक्लूड करने की कोशिश करता हूँ। वर्टिकल क्वेश्चन की बात करते हैं। मुस्तफ़ा, आपका टाइम आप जी जी पहले जी ही ज़्यादा ऊपर जा चुके हैं। I'm just concluding इंशाल्लाह ताला। वर्टिकल क्वेश्चन इन डेप्थ की बात की जाती है कि किसी भी टॉपिक को इन डेप्थ में जानने को वर्टिकल क्वेश्चन कहते हैं। मैं थोड़ा सा मूव ऑन कर रहा हूँ। इस तरह से एक सवाल है कुरान मजीद में, फाइन तफहून। ये वर्टिकल क्वेश्चन क्यों होगा? क्योंकि अल्लाह ताला पूछे कि तुम कहाँ जा रहे हो। इसको मल्टीपल डायमेंशन से हम देख सकते हैं कि इसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स निकल सकते हैं। इन डेप्थ में हम इस चीज को मालूम कर सकते हैं कि इंसान कहाँ जा रहा है। आगे चलते हैं कि अब इख्तिताम पे जाता हूँ कि इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर में बिगर क्वेश्चंस का सवाल क्या है, किस तरह से हमें ये बैटल को लड़नी है। ज़हनी साजिश से बैटल किस तरह से लड़ी। नबी अलैहिस्सलाम और उसके खलीफाओं ने ये करके दिखाया। नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा ने ये करके दिखाया। हमें भी सेम सूरत हाल करनी है, प्रॉब्लम्स को जानना है और उन प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन की तरफ जाना है। कुछ सवालात हैं जो मैं इससे यहाँ शो करूंगा ताकि कोई सवाल ये बिगर क्वेश्चंस हैं जो कि आज के लेवल के एथिस्टिक क्वेश्चंस हैं जो कि मैं यहाँ पे सिर्फ शो करूंगा। और अगर उससे रिलेटेड कोई भी जवाब हुआ तो इंशाल्लाह मैं प्रेजेंटेशन एंड करने के बाद दे सकता हूँ। ये वो सवालात हैं जो कि आज की यूथ और आज की सोसाइटी जिसे जो क्या नाम है सफर करती है और जिनके जवाब हमारे पास नहीं होते, क्योंकि हम अल्लाह की किताब को हमने छोड़ दिया है और इंटेलेक्चुअल कंडीशन से अल्लाह की किताब को पढ़ना छोड़ दिया है। ये कुछ सवालात हैं जो कि आजकल एथिस्टिक नजर आते हैं कि where is starting from the of Allah subhanahu wa ta'ala कि who created God, कि सब कुछ लिखा हुआ है तो फिर क़यामत के दिन का क्या मकसद है। या फिर मिसाल के तौर पर जब अल्लाह ताला इतना करीम है तो फिर दुनिया में इतना एविल क्यों है। या फिर मिसाल के तौर पर इस्लाम मोरलिटी पर बिलीव करता है तो फिर मुसलमान गिलाफ काबा पे इतना पैसा क्यों खर्च कर देते हैं। या फिर एक सवाल ये है कि एवरीथिंग इज गॉड कंट्रोल, जब खुदा के कंट्रोल में सब कुछ है तो फिर क़यामत के दिन हो सकता है अल्लाह ताला इनजस्टिस कर दें। या कुछ ऐसे ही सवालात हैं कि जब खुदा ने सब कुछ बनाया है, सवाल हो गया जब अल्लाह ताला ने इस दुनिया को, इस कायनात को 6 दिन में ही क्यों बनाया, 7 दिन में क्यों नहीं बनाया, 1 दिन में क्यों नहीं बनाया, कौन पाया कौन से क्यों नहीं बनाया। ऐसे सवालात हैं जो कि हमें यूथ नजर आते हैं। इफ गॉड इज गॉड, बेशक गॉड है, खुदा है, तो खुदा को नमाज की क्यों जरूरत पड़ रही है, प्रेस करने की क्यों जरूरत पड़ रही है। ये सारे एथिस्टिक क्वेश्चन है। और अल्लाह ताला को क्या मिलता है उसको प्रेस करने से। या फिर मिसाल को अल्लाह ताला पनिशमेंट मुस्तफ़ा, आई एम रियली सॉरी, आपका टाइम बहुत ऊपर जा चुका है। बिकॉज आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है, वेरी वेरी डीप एंड इंसाइटफुल पॉइंट्स, मगर फिर ये बाकी सबके साथ अनफेयर हो जाएगा। Waqru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. If you have any questions related to it, you can ask me. I'll definitely inshallah reply to it. जी, आप Jazakallah khair. अनम्यूट ही रहिए so that we can take questions. Okay. फायजा राज, जी जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्वेश्चन है प्रेजेंटेशन से जी सर, रिलेटेड? जी जी बिल्कुल सर। पूछिए। पिछले सेशन में भी ये सवाल मैंने किया था कि जैसे सूरह कहफ का मैंने हवाला दिया था, आपको याद होगा। और इस तरह मैंने हदीस मुबारक भी कही थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा बहुत ज़्यादा सवाल करने से बचो कि पहले की कौमें बहुत ज़्यादा सवाल करने की वजह से तबाह हो गई थी। तो ये आया था कि बाल की खाल उतारने वाले सवाल नहीं करने चाहिए, और जो हुक्म है, जो हुक्मिया मतलब होता है उस पर सवाल नहीं करने चाहिए। तो मेरा ये कहना ये था, यानी ये जवाब उन्होंने दिए थे। मैं पूछना ये चाह रही हूँ कि जैसे कि बच्चे ये सवाल करते हैं, ऑफ कोर्स बड़े भी अब तो करते हैं, हम नमाज क्यों पढ़े, हम रोज़ा क्यों रखें, मतलब ये हुक्मिया हैं चीज़ें, इस पर भी तो सवाल करते हैं ना, मतलब इस पे सवाल नहीं किए जाएंगे। मुझे समझ नहीं आ रही कि कौन से सवाल करने चाहिए और कौन से नहीं करने चाहिए, कौन से सवालों की वजह से तबाही आती है या किस तरह, मुझे मतलब क्लियर अभी तक नहीं हो रही ये चीज़। ओके, थैंक्स फॉर योर क्वेश्चन। मुस्तफ़ा, आप अनम्यूट की।
Brother Mustafa, are you available to answer the question? मुस्तफा का I guess माइक का कोई इशू है. Yeah, audio नजर नहीं आ रही. See. Farhana, would you like to? Yeah, I can help? take this. Yes. So Jazakallah khair, Sister Faiza, good question. You know कि again तो question का मकसद पूछें आप. तो ये पूछें अपने आप से या जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये क्वेश्चन पूछने के बिहाइंड या उसके पीछे क्या मकसद है. अगर ये मकसद कोई नेक मकसद है, किसी इससे बेहतरी आ रही है, किसी की अल्लाह के करीब आ रहे हो आप, तो उसके वो क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी गुड क्वेश्चंस. अगर नियत ये क्वेश्चन पूछने के पीछे किसी को डिस्ट्रैक्ट करना है, किसी को सही रास्ते से हटा देना है या किसी को बर्बादी की तरफ लेकर जाना है या इवन टाइम वेस्ट करना है, तो देन इट इज नॉट ए गुड क्वेश्चन. सो आप थोड़ा सा उसके मकसद पे थोड़ा सा फोकस करें. अपना जब है वेरी इजी टू फाइंड आउट आवर ओन इंटेंशन. दूसरों का इंटेंशन देखकर आई मीन आइडेंटिफाई करने थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, लेकिन अगर बार बार कोई आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है या आपका टाइम वेस्ट कर रहा है या उसकी कोई रेलेवेंस नहीं है, वो कोई सोल्यूशन की तरफ नहीं ले जा रही है, देन दैट इज नॉट ए गुड क्वेश्चन. होप दैट आंसर्स यू सिस्टर फैजा जी. और आई थिंक सिस्टर ईमान ने एक क्वेश्चन चैट में पूछा था कि ये क्वेश्चंस हमें किससे करने चाहिए. सो दैट वाज आल्सो ए गुड क्वेश्चन व्हिच शी हैड आस्क्ड. ब्रदर मुस्तफा जी, आर यू अवेलेबल इफ यू कैन आंसर सिस्टर ईमान's क्वेश्चन कि ये बड़े क्वेश्चंस हमें किससे पूछने चाहिए. सो माजरत चाहता हूँ, डिस्कनेक्ट हो गया था. ये सवाल जो है इन्होंने मुझसे पूछा कि ये जो बिग क्वेश्चंस हैं और बड़े सवालात हैं हमें किन से पूछना चाहिए. सवाल ये होता है कि इसका जवाब ये है कि हर मुसलमान को इतना काबिल होना चाहिए और कि वो इन फिक्री सवालात को खुद स्टडी करे और खुद इन सवालात को ढूंढे. मैंने यहाँ पर एक बात मेंशन की थी कि बीइंग अ मुस्लिम हमें इन सवालात को खुद ढूंढना है और ना सिर्फ एक खाली मुस्तफा या फिर किसी आयशा किसी शकील भाई को नहीं ढूंढना, पूरी दुनिया के मुसलमानों के सवालात ढूंढने हैं और हर मुसलमान इतना काबिल होना चाहिए कि इन सारे फिक्री सवालात के जवाब, इन बड़े सवालात के जवाब को खुद ढूंढ के खुद जवाब दें. तो इसके लिए क्या करना है, सिर्फ ये है कोडिंग वाइल इसके लिए करना क्या चाहिए, उसके लिए करना चाहिए कि इस लेवल पर, इस नहज पर हमें सिर्फ और सिर्फ स्टडी के ऊपर फोकस करना चाहिए. हमें अपनी हमें चाहे वो कौन सी भी फील्ड हो, चाहे वो फिजिक्स की फील्ड हो, चाहे वो एस्ट्रोनॉमी हो, चाहे वो मेडिकल साइंस हो, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, अपनी फील्ड में उस लेवल की स्टडी करनी है और विद रिस्पेक्ट टू द मोस्ट एडवांस बुक अल्लाह सुब्हानहू व तआला, अल्लाह ताला की किताब और दीन के साथ उस टॉपिक को, उस पर्टिकुलर फील्ड को इतना अच्छे से स्टडी करना कि हर फिक्री सवालात के जवाब इंसान खुद करे भी और उसको ढूंढे भी. तो किसको या कोई मोहल्ले का मौलवी साहब या फिर कोई यूनिवर्सिटी के लेक्चरर या कोई मदरसे का या कोई मोहल्ले के इलाके का कोई बंदा मुझे सवाल का जवाब नहीं ढूंढेगा. या फिर ग्लोबल लेवल के जो सवालात हैं उनको खुद इंसान सर्च करे, स्टडी करे, इस लेवल पर किताबें पढ़े. हमने किताबों को छोड़ा हुआ है, अल्लाह की किताब को छोड़ा हुआ है, अल्लाह के दीन को छोड़ा हुआ है, सीरा को छोड़ा हुआ है. उसके साथ साथ इंटरनेशनल लेवल पर और दुनियावी टेक्नोलॉजी को भी हमने छोड़ा हुआ है. तो जब तक हम खुद स्टडी नहीं करेंगे, जब तक हम खुद पढ़ेंगे नहीं, तब तक इन सवालात के जवाब हमें कोई भी नहीं दे सकता. और बेहतर ये है कि खुद भी स्टडी करें और फिर रेलेवेंट जो टीचर्स हैं, असतिज़ा हैं, उनके पास जाए, उनकी रहनुमाई लें और खुद भी पढ़े और दूसरों से भी जो है रहनुमाई ले सकते हैं. जज़ाकल्लाह खैरन ब्रदर मुस्तफा जी. तो यू नो आस्क, आप रिसर्च करें खुद और एक्सपर्ट से भी पूछें और अल्लाह सुब्हान तआला की किताब है डेफिनेटली. वी हैव सिस्टर शराफत अली or his brother. Please go ahead, unmute yourself. Let me unmute you. Yeah. Brother Sharafat Ali. जी, अस्सलाम वालेकुम. Question is that जी आवाज आ रही? जी आ रही है आपकी आवाज. क्वेश्चन ये है कि अभी कुछ देर पहले ये कहा गया कि राइट क्वेश्चंस होने चाहिए. अब एक नॉन मुस्लिम है या कोई ऐसा भी, मुसलमानों में भी ऐसे है जिनको इल्म ही नहीं है, तो उनके लिए तो राइट क्वेश्चन और जो बिगर क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट किस तरह से जाएगा? वो तो किसी भी तरह का सवाल आपसे कर सकते हैं ना, तो इसके बारे में काइंडली अगर गाइड कर दें. जी, जज़ाकल्लाह खैरन फॉर अ गुड क्वेश्चन. जी ब्रदर मुस्तफा आप आंसर करें. आप तो ब्रीफली आंसर करें बिकॉज़ वी हैव टाइम लिमिटेशन है. जी जज़ाकल्लाह. जवाब बहुत अच्छा है कि मिसाल के तौर पर कोई गैर मुस्लिम अगर हमसे कोई सवाल करता है तो हम कैसे इस बात को डिसाइड कर लेंगे ये सही सवाल है कि नहीं है या फिर दिस एंड दैट. तो सवाल ये है, इसका जवाब ये है कि वैसे बेशक कोई भी सवाल गलत नहीं होता, बस आप उसकी नौयत को चेक करें, उसकी नौयत और नीयत दोनों को चेक करें
کہ اس کی نوعیت کا سوال کیا ہے, کیا اس کا دنیا و آخرہ میں کوئی فائدہ ہے. اگر کوئی فائدہ ہے تو بے شک وہ صحیح سوال ہے, چاہے وہ دنیاوی پرسپیکٹو سے ہو یا دینی پرسپیکٹو سے. اس کے بعد اس کی نیت کو بھی چیک کرنا ہے کہ وہ کہیں ٹونٹ تو نہیں مارا, کیا پھر مثال کے آرگومنٹ پیش تو نہیں کر رہا, یا پھر دین کو ڈسگریس تو نہیں کر رہا. تو یہی وجوہات ہیں, دو ہی پیرامیٹرز ہیں جس کی بنیاد پہ ہمیں ٹیسٹ کرنا ہے. وہ یہ ہے کہ دنیا و آخرت, جیسے اللہ قرآن مجید میں نے مینشن بھی کیا تھا کہ وہ اپنے آپ کو لغویات سے دور رکھتے ہیں. تو لغویات کیا ہے, وین ٹاک کو کہتے ہیں. تو آپ کو یہ چیک کرنے کہ یہ اس کا کوئی واقعی میں دنیا و آخرت میں مقصد ہے تو وہ بے شک, چاہے وہ غیر مسلم پوچھے یا چاہے وہ مسلمان پوچھے, کیا وہ ایتھیسٹ پوچھے یا جو بھی پوچھے, وہ سوال درست ہے. اور اس کا دنیا و آخرت میں اگر کوئی نہ کوئی اس کا ریوارڈ ہے یا کوئی فائدہ ہے. That's the thing. Okay, thanks a lot, Mustafa. Now we can go to the next presentation. Our next group is C165. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر, میں اسکرین شیئر کرنی ہے اپنی. جی, اب آپ اسکرین شیئر کر سکتے. میں کلیئر ہوں بولنے جی, میں, آپ کی آواز آ رہی ہے سب اسکرین, کو؟ جی آپ کی آواز بھی آ رہی ہے اور اسکرین بھی ہمیں نظر آ رہی ہے. یو کین اسٹارٹ. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبی محمد وسلم. مائی نیم از عائشہ اینڈ آئی ایم فرام C165 گروپ. ہم لوگوں کو ایک بک دی گئی تھی, آسکنگ دا رائٹ کوشچنس فرام دا IMS ایڈمنس, دیٹ کہ ہم لوگ اس کو اسٹڈی کریں. تو ہم لوگوں نے مل کے اس گروپ کو اسٹڈی کیا, اور جو اس کے امپورٹنٹ پوائنٹس تھے وہ ہم لوگوں نے نوٹ ڈاؤن کیے اور ان کو ڈسکس بھی کیا اپنے گروپ میں, اور میں آج آپ لوگوں کو بتانا بھی چاہتی ہوں. وین یو ریڈ سم تھنگ, ون تھنگ شوڈ آلویز بی ان یور مائنڈ دیٹ ہم نے اس چیز کو ریڈ کیسے کرنا ہے. اس میں سے جو آرگیومنٹس ہے, کوئی بک پڑھ رہے ہیں آپ لوگ, کوئی ویڈیو دیکھ رہے ہیں, کوئی آرگیومنٹ دیکھ رہے ہیں, تو آپ کو ہمیشہ بتانا چاہیے کہ آپ نے اس کو کیسے دیکھنا ہے, کیسے سننا ہے, اس کے کون سے آرگیومنٹس آپ لوگوں نے لینے ہیں اور کون سے آرگیومنٹس آپ لوگوں نے ریفیوٹ کرنے ہیں. سوری. جی, تو اسٹیپس ٹو کریٹیکل تھنکنگ. اس بک میں ہم لوگوں نے یہ سیکھا اور ہم لوگوں نے سمجھا کہ کریٹیکل تھنکنگ کے لیے آپ کو ہمیشہ کریٹیکل ریڈر ہونا پڑتا ہے. جب بھی آپ کوئی چیز پڑھ رہے ہیں, کوئی ویڈیو دیکھ رہے ہیں, کوئی آرگیومنٹ سن رہے ہیں, تو سب سے پہلے آپ کو چیزوں کو کریٹیکلی انالائز کرنا ہے. تو یہ ہمارے کچھ اسٹیپس تھے, اسٹیپس ٹو کریٹیکل ریڈنگ, جو ہم نے اس بک میں سے نکالے. اب ہم بات کریں گے اس کا جو ہمارا سب پورشن ہے وہ ہے کریٹیکل تھنکنگ کا سب کریٹیکل ریڈنگ. ہم آپ کو آج بتائیں گے اس میں کہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم نے کریٹیکل ریڈنگ کیسے کرنی ہے, جب ہم نے کوئی بک ریڈ کرنی ہے, ہم نے کوئی آرگیومنٹ دیکھنا ہے یا ہم نے کوئی ویڈیوز دیکھنی ہے. نیکسٹ سلائیڈ ہے ہماری, بینیفٹس آف آسکنگ دا رائٹ کوسچنس. وین ہم کوئی جب سوال پٹ کرتے ہیں تو ہمیں ہمیشہ پتہ ہونا چاہیے کہ صحیح اور غلط سوال کیا ہے. صحیح اور غلط سوال ہم لوگ اس بیس پر ڈیسائیڈ کرتے ہیں, وہ فیکٹس اور اوپینین کی بیس پہ ہوتا ہے. فیکٹس آپ لوگوں کو پتہ ہے, جو اصل بات ہوتی ہے وہ فیکٹس ہوتی ہے, اور اوپینین کیا ہوتی ہے, جو رائٹر جو لکھ رہا ہے یا جو ویڈیو بنا رہا ہے اس کی رائے ہوتی ہے, وہ اوپینین ہوتی ہے. اور اس پہ ہمیں دو ٹیکنیک اسٹڈی کی, ایک تھی فلٹر ٹیکنیک اور ایک تھی اسپونج ٹیکنیک. اسپونج ٹیکنیک میں کا کانسیپٹ ایسے میں بتانا چاہوں گی آپ کو کہ سمینا ماتانا, سنا سمجھ لیا اور اطاعت کی. مطلب اس میں ہم جو بھی پڑھ رہے ہیں یا جو کوئی ویڈیو دیکھ رہے ہیں, ہم نے وہ سب ایبزارب کر لیا, جو ہمیں لگا کہ جو رائٹر نے کہا ہے وہ ٹھیک کہا ہے. یہ ٹیکنیک ہم نے یوز نہیں کرنی. جب بھی ہم لوگوں کو اگر کریٹیکل ریڈر بننا ہے تو ہم نے یہ ٹیکنیک نہیں یوز کرنی, ہم نے بلکہ فلٹر ٹیکنیک کی طرف آنا ہے. جو فلٹر ٹیکنیک ہے وہ ہمیں کوسچننگ اپروچ کی طرف لے کے جاتی ہے. ہم لوگ جو بھی ہمارے پاس مٹیریل آیا ہوا ہے, جو بھی ہمارے پاس بک آئی ہوئی ہے, پیراگراف آیا ہوا ہے, ہم پہلے تو اس کی کنکلوژنس دیکھیں گے, اس میں کیا کنکلوژنس نکالے ہیں اس رائٹر نے, اور اس کے حساب سے اس پہ پھر اپنے کوسچنس پٹ کریں گے ان آرگیومنٹس کو لے کر. اور جب ہم آتھر کے پوائنٹ آف ویو سے چیزوں کو دیکھیں گے اور اپنے پوائنٹ آف ویو سے چیزوں کو دیکھیں گے, تو ہمارے پاس دو پرسپیکٹیوز آ جائیں گے. ایک آتھر کا جو وہ لکھ رہا ہے یا جو ویڈیو بنا رہا ہے یا کوئی بھی ہے جو کنٹینٹ میکر ہے, اور ایک میرا پرسپیکٹیو ہوگا. تو اگر ہم لوگ یہ کریٹیکل ریڈنگ کی ہیبٹ ان دا لانگ رن لے کر جائیں گے تو ہم لوگ کو ان دا لانگ رن پریکٹس بھی ہوگی, اور ہم لوگ ایک کنسٹرکٹیو آرگیومنٹ بھی بلڈ کر سکتے ہیں اس سے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے ہر کسی کا سیٹ آف بلیف سے اس کو چیلنج کرنا شروع کر دینا ہے. ہر چیز پہ آپ کیوں نہیں کہہ سکتے ہیں, آپ نے دیکھنا ہے کہ کہاں پہ آپ کو کیوں کہنا ہے. اور سب سے امپورٹنٹ بات یہاں پر یہ میں آپ لوگوں کو کہنا چاہوں گی, جب بھی آپ لوگ کوئی چیز بک کتاب پڑھیں اور کوئی ویڈیو دیکھیں, تو ہمیشہ کوئی امپورٹنٹ چیز آپ دیکھ رہے ہیں تو ہمیشہ اس کے پوائنٹس نوٹ ڈاؤن کریں.
एक तो आपको आपके काम भी आएंगे और आप उनको एनालाइज भी कर सकते हैं कि इसमें ये भी आप एनालाइज कर लेंगे कि जो राइटर है या वो जो बनाने वाला है, जो लिख रहा है इसको, उसकी क्या अप्रोच है इस चीज़ को लेकर। और हर चीज़ को गलत मत करें, हर चीज़ पे ये ना कह दें कि ऐसा क्यों है। लॉजिकली सवाल पुट करें और अपने रैशनल्स को हमेशा फ्रंट पे रखें और इमोशंस को साइड पे रखें, इमोशंस को बैक सीट पे रखें जब भी आप कोई क्वेश्चन पुट कर रहे हैं। और बड़ा सवाल आप लोगों को पता है, सबको अब तक तो सब हम लोगों ने प्रेजेंटेशंस देख ली हैं, सबको पता चल गया है कि बड़ा सवाल वही है जो ज़्यादातर लोगों में इम्पैक्ट क्रिएट कर सके और ज़्यादा लोगों में वो इन्फ्लुएंस पैदा कर सके। अब मैं इसकी मिसाल आपको ऐसे देती हूँ कि सहाबा कराम जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में थे, जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फितनों के बारे में बताया, तो सहाबा कराम ने उनसे ये नहीं पूछा कि ये फितना क्यों आएगा, कैसे आएगा, कब आएगा, बल्कि उन्होंने ये पूछा अगर फितना आएगा तो हमने उससे बचना कैसे है। ये अब एक बड़ा सवाल था। उस सवाल की बेस पर आज तक हम उस सवाल से जो उन्होंने पूछा उससे फ़ायदा उठा रहे हैं। हमें पता है कि हमने फितने के दौर में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्लियर इंस्ट्रक्शंस दे दी हैं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट स्लाइड है, इसमें उन्होंने फिर नेक्स्ट स्लाइड पे हमारा ये है रिकॉग्नाइजिंग द राइटर्स ऑर्गेनाइजेशन। इसमें है कि हम लोगों ने स्ट्रक्चर देखना है, जो भी हमारे पास कंटेंट है, बुक है या वीडियो है, इसका हमें स्ट्रक्चर देखना है। जब हम लोग को पढ़ते हैं कोई भी बुक, हम लोग को पता चल जाता है कि जो राइटर का तरीके लिखने का कैसा है। ठीक है, राइटर हमेशा सबसे पहले बात को स्टार्ट करता है, वो कोई कंट्रोवर्सी पुट करता है, फिर वो कोई क्वेश्चन रेज करता है, फिर वो कुछ उसके एग्जांपल्स देता है, कोई डेफिनेशन बताता है, फिर उसको कोई सपोर्टिंग एविडेंस देता है। तो इस तरह की हम लोग जब चीज़ें हमें पता होती हैं तो हम उससे एनालाइज कर सकते हैं उस राइटिंग को देख के कि इसका राइटिंग स्टाइल क्या है इस राइटर का। और जब हम उसको एनालाइज कर सकते हैं तो हम उसके जो कंक्लूजन्स हैं और इश्यूज हैं उन तक भी पहुंच सकते हैं। अब इश्यूज और कंक्लूजन्स दो तरह के होते हैं, एक जो आर्ग्यूमेंट्स की बेस पे होते हैं बेसिकली, एक होते हैं पर्सपेक्टिव आर्ग्यूमेंट्स और एक होते हैं डिस्क्रिप्टिव आर्ग्यूमेंट्स। जो पर्सपेक्टिव आर्ग्यूमेंट्स वो होते हैं जो हम लोगों के वो वाले आर्ग्यूमेंट्स होते हैं जो हमारे अगले उन पे क्वेश्चन रेज करना जो हमारे अगले नेक्स्ट 100 ईयर्स के जो हमारे क्वेश्चंस हैं उनका आंसर कर दे सकते हैं। जैसा कि मैं आपको इसकी एग्जांपल दे सकती हूँ पर्सपेक्टिव आर्ग्यूमेंट की, कि अगर आने वाले वक्तों में दीन को, रिलीजन को अलग कर दिया जाए दुनिया से, दुनिया का क्या नक्शा होगा। ये एक पर्सपेक्टिव आर्ग्यूमेंट है, इसमें आपको नेक्स्ट फ्यूचर के बारे में पता चल रहा है। और जो डिस्क्रिप्टिव आर्ग्यूमेंट्स हैं वो करंट सिचुएशन को एड्रेस करते हैं। जैसे कि आजकल का क्वेश्चन हमारा ये हो सकता है आर्ग्यूमेंट में कि बच्चों का IQ कैसा बढ़ाया जाए। तो हम लोग क्रिटिकल एवेल्युएशन जो है वो तब तक नहीं कर सकते जब तक आपको कंक्लूजन पे, जो उस राइटिंग का कंक्लूजन है, उस पर आप फोकस नहीं करेंगे। अब जो हमारे रीजंस होते हैं वो जो होते हैं हमारे ऑलवेज कंक्लूजन के अराउंड घूम रहे होते हैं। जब किसी कंक्लूजन आप राइटिंग में आपको कोई कंक्लूजन मिल जाए कि इस राइटर का ये कंक्लूजन है, तो हमेशा उस पर आप 5 बाय जो क्वेश्चन अप्रोच है वो उस पर इम्प्लीमेंट करें। ठीक है, आप उसको देखें कि वो उसने कंक्लूजन कैसे कर दिया, उसके सिर्फ ओपिनियंस तो नहीं है, इसमें फैक्ट्स हैं कि नहीं है, एविडेंसेस हैं कि नहीं है। ठीक है, उसने इमोशंस तो नहीं आगे रखे हुए। ये सब चीज़ें मैंने आपको पिछली बताएंगे, जो टेक्निक्स आप यूज़ करेंगे कोई भी राइटिंग को या कंटेंट को देखते हुए या उसको एनालाइज करते हुए। और फिर हमारे पास आ गया आगे कि एम्बिगस व्हाट वर्ड्स फ्रेजेस आर एम्बिगस। एम्बिगस चीज़ें वो होती हैं जो कि कंटेन मोर देन वन मीनिंग इन एम्बिग्विटी। फॉर एग्जांपल फेमिनिज्म। अब फेमिनिज्म एक टाइम पे और था और आज अगर देखा जाए तो फेमिनिज्म के मल्टीपल मीनिंग्स हैं। और इस चीज पर हम बेस करेंगे। अगर हम लोगों को पता होगा कि एम्बिगुअस टर्म्स कौन सी हैं, तो हम जब किसी चीज को स्टडी करेंगे हम देख सकते हैं कि राइटर ने इसमें एम्बिगुअस टर्म्स यूज की हैं या वो फैक्ट्स पे बात, या वो सिर्फ एक चीज को फोकस कर रहा है। जो LGBT है वो भी एम्बिगुअस टर्म्स है क्योंकि उसमें भी मल्टीपल चीजें इन्वॉल्व हो गई हैं। जो फेमिनिज्म है वो भी एम्बिगुअस टर्म्स है। और उसके बाद हमारी लास्ट स्लाइड की तरफ मैं मूव करना चाहूंगी। जो हमने इसमें पढ़ा वो है वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट्स एंड अजम्पशंस। वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट्स जो होते हैं वो हमेशा मॉरल से डिराइव होते हैं, और जो मॉरल्स हैं वो आपको पता है हमारे रिलीजन्स की बेस पे होते हैं। इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे दे सकती हूँ, जो डार्विनिज्म की थ्योरी है उसमें एक हमारा कॉन्सेप्ट है मुसलमानों का और एक साइंस का है। तो उसमें जो ये चीज़ है जो इस चीज़ को डिफाइन करती है वो है वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट है, क्योंकि ये हमारे रिलीजन की बेस पर आया हुआ है। इस कॉन्फ्लिक्ट को हम लोग वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट कहेंगे। और जो अजम्पशंस वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं वो होते हैं जो कि हिडन होते हैं राइटिंग्स में, अनस्टेटेड होते हैं, राइटर्स उसको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। बेसिकली वो बिलीव्स होते हैं जो उनके अंदर होते हैं और वो कहीं ना कहीं उनकी राइटिंग में झलक जाते हैं। ठीक है, अगर हम लोगों को पता चल जाए कि राइटर के ये बिलीव्स, या अंदाजा हो जाता है जब आप कोई चीज़ पढ़ रहे हो या देख रहे हो कि ये इसमें फैक्ट्स किस हद तक है
या इसकी assumptions हैं, ये ज़्यादातर ये उस पे बात कर रहा है, वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट्स पे बात कर रहा है। तो जब आप मॉरल रीजनिंग करते हैं तो वो कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा करता है और इसे ही हम लोग वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट्स कहते हैं। I Jazakallah hope I khairan. am not over my time. Yeah, I think you will. But Jazakallah khairan, Sister Aisha. Alhamdulillah, it was a very good presentation. आपने बहुत अच्छी तरीके से explain किया कि हम कोई किताब को कैसे पढ़ें, and Subhanallah, it was very very insightful. Say, now we will go ahead and take your questions. Yeah, please raise your hands in the. Please raise your hands or आप type भी कर सकते हैं questions. Let me go ahead and unmute Sister Shakila. Yeah, okay. Sister Shakila, go ahead. And yes, if you can go ahead and ask your questions. Assalamu alaikum everyone. Walaikum assalam. मेरा क्वेश्चन नहीं, लेकिन मेरा जो उन्होंने कहा उसके ऊपर मेरा आर्गुमेंट है ये जी। अब को से भी आर्गुमेंट होने दो या डिबेट होने दो या कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट होने दो, मतलब दो आइडियोलॉजीज के बीच में अगर कुछ वार चल रहा कि कौन सा सही है, वो किस पैरामीटर के ऊपर ये डिसाइड होगा कि व्हाट इज द राइट वन। को से भी आर्गुमेंट, अब दुनिया में इतने आइडियोलॉजीज है, इतने आइडियोलॉजीज में हम कोसा बुक पढ़ के ये कोसे पेडिस्टल के ऊपर ये डिसाइड करें कि यस दिस थ्योरी इज द राइट। सो मैं ये कहना चाह रही थी कि हम कोई भी ऐसा डिसाइड नहीं कर सकते कि मेरे नजर में या उनके नजर में या किनके नजर में सही, ये तो डिसाइड नहीं कर सकते। वो डिसाइड करने के लिए एक ही पैरामीटर है, वो ये है कि नॉलेज। जी, नॉलेज मीनिंग इज नोइंग द गॉड, दिस इज द अल्टीमेट मीनिंग ऑफ द नॉलेज। वो ऑलरेडी मैं पहले कह चुकी हूँ। तो मेरा आर्गुमेंट ये है कि जब तक इंसान को वो राइट क्वेश्चन पूछने वाला भी हो, किसको भी हो, क्वेश्चन पूछने से पहले भी उसको ये जानना जरूरी है कि वो नॉलेज बेस्ड है क्या नहीं। अब जब से डिबेट में ये चल रहा है कि राइट क्वेश्चन कौन सा है, रॉन्ग क्वेश्चन कौन सा है, इसमें भी फिर यही मसला आता है कि हर एक सवाल सही है क्योंकि उसको नहीं पता ना, आंसर नहीं पता, उसको पूछ रहा है। लेकिन वो क्वेश्चन मस्ट बी आंसर्ड इन दो तरीके में हो सकता है क्वेश्चन के, इधर ये वो नॉलेज को तो भी प्रोजेक्ट करना या नहीं तो एक मसले को तो भी वो हल करना। ये दोनों उसके पेडिस्टल है कि एक क्वेश्चन सही है या गलत है। नॉलेज तो कंपल्सरी वो आंसर में से आना चाहिए, जो उसको नहीं मालूम वो मालूम होना चाहिए, ये दो है। और पेडिस्टल भी यही है कि अल्लाह ताला का जो भी निजाम भी हो दो, कुरान भी हो दो या उनके बारे में हो दो, उन्होंने जो कहा उसके ऊपर अगर ये आइडियोलॉजी नहीं फिट बैठ रहा तो वो गलत है। तो यहाँ पे फिर ये बोलते हैं कि फिर रिलीजन और नॉन रिलीजन दो भी है ना बोले तो अब ये सवाल पूरे ये दोनों के चक्कर में घूमते रहेंगे, जो अल्लाह को बिलीव करने वाले, ना बिलीव करने वाले। तो ये दो ओनली द मेन थिंग्स हो जाते हैं ना। तो पेडिस्टल कौन सा है, मैं ये पूछना चाह रही कि पेडिस्टल कौन सा है कि एक आर्गुमेंट को सही कहने के लिए। Jazakallah khairan. Yeah, Sister Aisha, would you like to take that question? मैं ट्राई करती हूँ। मैम पहले तो आपने कहा कि क्या कहते हैं राइट क्वेश्चन हमें पता नहीं चलता कौन सा या उसका क्या है। देखिए अगर आपके पास पहले तो ये बात है कि बुक है और बुक के हमने बताया कि उसमें उन्होंने टेक्निक्स क्या बताई हुई हैं किसी भी मटेरियल को स्टडी करने के लिए। पहला पॉइंट तो मेरा ये है। और दूसरा पॉइंट ये है कि आप जो क्रिटिकल रीडिंग करते हैं वो रीडिंग आप करते ही इस बेस पे जब आपके पास इनफ नॉलेज होता है, आपका साउंड माइंड होता है। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप तो किसी भी चीज़ को एनालाइज कर ही नहीं सकते, ना उसको क्रिटिकली थिंक कर सकते हैं ना रीड कर सकते हैं। ठीक है। और जो आप पेडिस्टल की बात करें कि पेडिस्टल कौन सा है, हर किसी का पेडिस्टल अपना अपना है। ये हम लोग जब देखते हैं कि इस्लामोफोबिया पे डिबेट्स हो रही होती हैं तो हम लोगों के जो बच्चे हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम किसको सही कहें किसको गलत कहें। तो बेसिकली पहले तो सेल्फ स्टडी है ना फर्स्ट स्टेप। तो आप पहले सेल्फ स्टडी करेंगे तो आप किसी से आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं ना। सही, मेरा पॉइंट ये है। बाकी कोई और इसमें ऐड करना चाहे तो मोर देन वेलकम। Yeah, Jazakallah khairan. So subhanallah, yes, definitely knowledge is important. वो तो हर क्वेश्चन पूछते ही इसी है इसलिए ताकि we get some knowledge and again it has to be relevant ताकि कोई solution उसमें मिले बिल्कुल, and we have to increase our knowledge as well. Jazakallah khairan. Okay, let's I think Sister Aruj, go ahead and ask your question. Let me unmute you. Okay, Sister Aruj, if you're able to unmute yourself. Okay, I don't think so. Okay, brother Ali, okay, brother Ali, आप unmute करें अपने आप को और क्वेश्चन पूछें आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैम, मेरा क्वेश्चन क्रिटिकल एनालिसिस से रेलेवेंट है जी। कि पर्सनल बाइस, जो भी हम क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं, वो हमें पता है कि वो गलत है, लेकिन अगर हम क्रिटिकल एनालिसिस
بہت زیادہ انفلوئنس کرتی ہے ہماری تھنکنگ ابیلٹی پہ، جو کہ آؤٹ آف دی باکس سوچنے نہیں دیتی. فار ایگزامپل سر ساحل کی اور جو ٹریڈیشنل علماء کرام ہیں ہمارے، ان کی بیسک اختلاف یہ چل رہا ہے کہ وہ سائنس کو ماننے کو تیار ہی نہیں ہے، کیونکہ ان کی ایک بات ہے جس میں وہ اٹکے ہوئے ہیں اور وہ اس سے باہر نہیں آ رہے. سو اسے مینج کیسے کیا جائے، کریٹیکلی انالائز یا کریٹیکلی تھنک کرنے کے لیے پرسنل بائسز کو کیسے بریک کیا جائے یا مینج کیا جائے. دیٹس مائی کوسچن. جزاک اللہ خیرن برادر علی فار ویری گڈ کویشچن. سسٹر عائشہ آپ آنسر کرنا چاہیں گی؟ میرا خیال ہے پہلے تو اس کا یہی اسٹیپ ہوگا کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. آپ کو میرا خیال ہم لوگوں نے پیچھے کل سیشن ہوا ہمارا کرٹیکل انالیسس کال میں بھی انہوں نے یہی بتایا کہ آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ پتہ ہونا چاہیے اسپیکرز جو بھی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، جب آپ کو تھوڑا سا ان کا بیک گراؤنڈ پتہ ہوگا تو آپ زیادہ بہتر طریقے سے انالائز کر سکتے ہیں کہ کون ٹھیک کہہ رہا ہے اور کون غلط کہہ رہا ہے. میرا خیال اس کا یہی آنسر بنتا ہے کمپریہنسو. صحیح. یا اوکے. سو سبحان اللہ، بایس کے لیے اٹ از ڈیفیکلٹ. جب آپ بایس میں ہوتے ہو تو آپ کو سمجھ بھی نہیں آتا کہ آپ بایس میں ہیں. تو اس لیے اٹ بیکمس ویری امپورٹنٹ کہ کوئی آپ کو آپ کا بایس بتائے. رائٹ، ایوری مسلم از اے mirror ٹو دی ادر مسلم. تو سبحان اللہ، سچ این امپورٹنٹ تھنگ دیٹ کہ سامنے والا بایس بتائے. اور دی امپورٹنٹ پارٹ آف دی ادر پرسن از کہ وہ فیڈ بیک کو سمجھے، وہ انڈرسٹینڈ کرے اور اس پہ ریفلیکٹ کرے اور دیکھے کہ اس میں کوئی سچائی ہے یا نہیں. So that is the only way we can get, and definitely جو open minded اور critical thinking سیکھنے سے آپ کو اس میں کافی فائدہ ہوگا. جزاک اللہ خیرن. Okay, we will take okay, let's go on to I think Sister Uruj, آپ کا presentation next ہے. Let's go ahead and get with your presentation. Let me unmute you. This is Uruj. Please unmute yourself. Okay. And then I think Sister Uruj is not able to. Okay, let me go ahead and okay, Sister Aisha is already done with the presentation. Okay, anyone else has any questions in the meantime? We will try to unmute Sister Uruj again. Please raise your hands या फिर chat में आप अपने questions डाल भेजें. Okay. Sister Uruj, I have sent a request for you to unmute. Please unmute yourself. Yes, sister. Yeah. Walaikum assalam, Sister Uruj. Sister Uruj, आपके माइक में काफी डिस्टरबेंस है. Can you? मेरी आवाज आ रही है? अब आ रही है. जी जी. अभी ठीक है? अब बिल्कुल डिस्टॉर्शन तो perfect. नहीं है? नहीं, अब सही है. जी. Okay. आपका प्रेजेंटेशन था सिस्टर उरुज? अच्छा, कहना है शुरू में? हाँ जी, Yes. प्रेजेंटेशन थी मेरी. जी. आप कहना है शेयर माय स्क्रीन? yes, yes you can. Okay. Okay. एक second, let me give you the sharing option. जी, you can share your screen. Go ahead. हाँ, नजर आ रही है स्क्रीन? शुरू ओके. करें. मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? जी आ रही है. ओके. Acha, today my name is Uruj Danish, and today's my presentation is about the art of asking right and bigger question. तो इसमें कुछ पॉइंट्स को मैं डिस्कस करना चाहती हूँ. सबसे पहला तो ये कि क्यूरियोसिटी लीड्स टू क्वेश्चनिंग. जो इंसान को क्यूरियोसिटी होती है किसी चीज़ की, वो उसको क्वेश्चनिंग करने की तरफ लेके जाती है. इसका एविडेंस हमें कुरान में ही मिलता है. सूरह बकरा की आयत नंबर 30 है, जिसका तर्जुमा ये है कि एंड रिमेंबर व्हेन योर लॉर्ड सेड टू द एंजल्स आई एम गोइंग टू प्लेस अ सक्सेसिव ह्यूमन अथॉरिटी ऑन अर्थ. यानी कि मैं अल्लाह ताला ने जब फरिश्तों से मुकालमा किया था, जब इंसान को इस बुराए अर्ज पर अपना खलीफा बनाकर भेजा था, तो फरिश्तों से कहा था अल्लाह ताला ने कि मैं इस दुनिया में अपना खलीफा बनाकर इंसान को भेजना चाहता हूँ. तो फरिश्तों ने अल्लाह ताला से सवाल किया. उनको एक क्यूरियोसिटी थी ना, क्योंकि इंसानों से पहले भी तो एक मखलूक इस दुनिया में रहती थी, जिन्नात, और उन्होंने बहुत फसाद और खून खराबा करना
دنیا میں مسائل پیدا کرنا. تو ان کو ایک کیوریوسٹی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور نئی مخلوق بنائی ہے جس کو اللہ تعالیٰ دنیا میں اپنا خلیفہ بنا کر بھیج رہے ہیں. تو انہوں نے اللہ سے پوچھا کہ they asked Allah, will you place in it someone who will spread corruption there and shed blood while we glorify your praises and proclaim your holiness. یعنی کہ فرشتوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے کہا اینڈ اچھا میں یہ کمپلیٹ کروں. اللہ ریسپونڈیڈ آئی نو وٹ یو ڈو ناٹ نو. فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے کیوریوسٹی میں پوچھا کہ اللہ ہم تو تیری عبادت کرتے ہیں اور ہم تیری تعریف کرتے ہیں اور تیرے نام کی تسبیح کرتے ہیں, کیا تو دنیا میں ایک ایسی مخلوق کو بھیجنا چاہتا ہے کہ دنیا میں جو فساد پھیلائے اور جو کہ خون خرابہ کرے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تو نہیں جانتا. تو فرشتوں کو ایک کیوریوسٹی تھی جس کی وجہ سے انہوں نے اللہ سے سوال کیا. اب اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت ان کو بولا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. یعنی کہ اللہ کا جو علم ہے وہ نو ڈاؤٹ وہ تمام لوگوں کے اور جنات کے اور فرشتوں کے تمام علوم سے بالا تر ہے. اچھا نیکسٹ اس میں ہم لوگ یہ ڈسکس کریں گے کہ گیننگ نالج جو ہے وہ کوشچن کرنے کے لیے کتنا ضروری ہے. اس کا بھی میں قرآن سے آپ کو تھوڑا سا ایویڈنس دوں گی. ٹھیک ہے, یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 31, 32 اور 33 ہیں. He taught Adam the names of all things. Then he presented them to the angels and said, tell me the names of things if what you say is true. یعنی کہ جو تم کہہ رہے ہو اگر وہ سچ ہے, اگر تم یہ کہہ رہے ہو کہ ہم تو آپ کا نام اللہ تعالیٰ ہم آپ کا نام بھی لیتے ہیں, ہم آپ کے نام کی تسبیح بھی کرتے ہیں, ہم تعریف بھی کرتے ہیں, تو کیا آپ ایسی مخلوق کو دنیا میں بھیجیں گے جو دنیا میں فساد پھیلائے گا؟ تو اگر تم سچے ہو تو ٹھیک ہے, میں یہ چیزوں کے نام سکھاتا ہوں آدم کو اور تمہارے سامنے بھی رکھتا ہوں, تو تم مجھے اس کے نام بتاؤ. تو فرشتے جو تھے وہ وہاں پہ ان کا علم مطلب اللہ تعالیٰ صرف جج کرنا چاہ رہے تھے کہ میں نے آدم کو سکھائے ہیں تو کیا یہ جو کہہ رہے ہیں یہ بتا سکتے ہیں. اچھا پھر وہاں پہ ایک چیز ان سے جب اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اگر تم سچے ہو تو تم بتاؤ, تو دے ریپلائڈ گلوری بی ٹو یو, وی ہیو نو نالج. نو نالج مطلب یہاں سے اب آپ اندازہ لگائیں کہ نالج کا کتنی امپورٹینس ہے. We have no knowledge except what you have taught us. جو اللہ نے ہمیں سکھایا ہے ہم اس سے زیادہ نہیں جانتے. You are truly the all knowing all wise. اللہ کو انہوں نے کہا کہ آپ ہی سب جانتے ہیں اور ہم اتنا ہی جانتے ہیں جو آپ نے ہمیں سکھایا. اللہ said, O Adam, inform them of their names. Then when Adam did, Allah said, Did I not tell you that I know the secrets of the heavens and the earth, and I know what you reveal and what you conceal. تو اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ان آیات سے ہمیں پتہ چلتی ہے وہ یہ پتہ چلتی ہے کہ جو نالج تھا نا حضرت آدم علیہ السلام کا, وہ جو تھا انہوں نے جو انسان یہ جو مخلوق ہے انسان اللہ تعالیٰ نے جو اس کی تخلیق کی ہے اس کو اسٹاپ پر لے گئے. وہ کیسے؟ کیونکہ وہ ڈیسائیڈ کر سکتے تھے بہتر میں اور اچھائی میں اور برائی میں. ٹھیک ہے, یعنی کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے جو نالج دیا تھا اس کی بیسس پہ ایک تو وہ ساری چیزوں کے بارے میں بتاتے تھے اور دوسرا وہ اچھائی اور برائی کا ڈفرینشیٹ کر سکتے تھے. ٹھیک ہے, تو نالج جو ہے وہ بہت ضروری تھا. ٹھیک ہے, اچھا ابھی اس میں ہم نیکسٹ یہ بات کریں گے کہ وزڈم ڈیفائنز دا کوالٹی آف یور کویسچن. یعنی کہ جتنا آپ کا وزڈم ہوگا وہی آپ کی کوالٹی آف کویسچن کو ڈیفائن کرے گا. اس کی ایگزامپل میں ایسے بھی آپ کو دے سکتی ہوں جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا جتنے اچھے اسکالرس جتنے بھی ٹاپ لیول کے اسکالرس ہیں جتنا زیادہ ان کا وزڈم ہوتا ہے ان کی کوالٹی آف کویسچن اتنا ہی بہتر ہوگا ایز کمپیئر ٹو دا ون ہو از گیننگ نالج یا جس نے کچھ پڑھا ہی نہیں. آپ ان دونوں لوگوں سے گفتگو کر کے آپ کو اچھا اندازہ ہو جائے گا. ایک جاہل آدمی ہو اور ایک پڑھا لکھا انسان ہو کہ جو علم حاصل کرنے والا ہو اور مزید علم حاصل کر رہا ہو, آپ ان دونوں سے بیٹھ کے اکیلے میں اگر گفتگو کریں گے تو آپ کو ان کے مینٹل لیول کا اندازہ خود بخود ہو جائے گا. جس کا وزڈم زیادہ ہوگا اس کو کوالٹی آف کویسچن بھی اتنا ہی بہتر ہوگا, جس کا وزڈم کم ہوگا اس کو کوالٹی آف کویسچن ہی اتنا بیکار ہوگا. اچھا اس کی بھی ایک ایگزامپل میں سورہ بقرہ میں سے دوں گی, سورہ بقرہ کی آیت نمبر 37. اچھا Then Adam received words from his Lord and he turned towards him. Surely he is the acceptor, repentance most he is the acceptor of repentance most merciful. اچھا اس میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے بڑے خوبصورت 3-4 سوالات کی اپنے وزڈم کی بیسس پہ. یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلا
کہ اللہ تعالیٰ نے उनको जो नॉलेज दिया था उसके उससे जो उनका विजडम शऊर जो बना, तो उससे उनकी सवालात भी वो उन्होंने ऐसे ही किए, क्योंकि सबसे ज़्यादा इल्म जो है ये हम भी जानते हैं, वैसे तो तमाम अंबिया को दिया गया है, लेकिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने तमाम चीज़ों का उलूम दिए थे, ठीक है? वो इस दुनिया में आने वाले पहले इंसान थे, तो उनकी विजडम को आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो किस लेवल की होगी और उनके सवालात क्या थे। तो उन्होंने अल्लाह से इतने खूबसूरत सवाल किए जिसका तफसीर इब्न कसीर में भी ज़िक्र है, जो कि मैं कुछ सवालात का ज़िक्र यहाँ करूँगी कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से पूछा कि ओ लॉर्ड, डिड यू नॉट क्रिएटेड मी विद योर ओन हैंड्स, कि अल्लाह से उन्होंने पूछा कि अल्लाह ताला आपने मुझे अपने हाथों से नहीं बनाया? अल्लाह ने कहा हाँ, मैंने बनाया। फिर उन्होंने पूछा एंड ब्लो लाइफ इनटू मी, और मुझ में रूह डाली, तो अल्लाह ताला ने कहा हाँ, मैंने डाली। फिर उन्होंने कहा कि एंड व्हेन आई स्नीज्ड यू सेड मी अल्लाह ग्रांट यू हिज मर्सी, डज नॉट योर मर्सी प्रोसीड योर एंगर। फिर उन्होंने कितना खूबसूरत सवाल यहाँ पर किया कि अल्लाह, जब मुझे छींक आई पहली दफ़ा, जब रूह फूंकी गई हज़रत आदम अलैहिस्सलाम में, तो वो छींके थे, तो अल्लाह ताला ने फरमाया था यरहकुमुल्लाह, यानी कि अल्लाह की रहमत हो आप पर। तो उन्होंने कहा कि क्या आपकी रहमत जो है वो आपके गुस्से पर गालिब नहीं? यानी कि कितना खूबसूरत सवाल अपनी विज़डम की बेसिस पे उन्होंने अल्लाह से किया। अल्लाह ने कहा हाँ, बिल्कुल गालिब है। आदम अलैहिस्सलाम ने फिर पूछा एंड यू जस्ट नीड मी टू कमिट द इविल एक्ट, क्या आप नहीं जानते थे कि मैं गुनाह करूँगा? ये भी तो अल्लाह का इल्म था, अल्लाह को पता था पहले से कि वो करेंगे, तो अल्लाह ताला ने कहा हाँ। फिर उन्होंने कहा कि और अल्लाह ताला, अगर मैं आपसे माफ़ी माँगूँ तो क्या आप मुझे दोबारा जन्नत में नहीं भेज देंगे? तो अल्लाह ताला ने कहा कि हाँ, मैं भेज दूँगा। तो ये उनकी विज़डम की बेसिस पे जो उन्होंने क्वेश्चन किए अल्लाह ताला से, वो अल्लाह को इतने पसंद आए कि अल्लाह ताला ने खुद उनको फिर सिखाया कि आप मुझसे तौबा किस तरह करेंगे और किस तरह इस दुनिया में अपनी ज़िंदगी किस तरह गुजारेंगे और किस तरह फिर आपको दोबारा अपने घर में वापस लौटाया जाएगा, जिस घर से आप इस दुनिया में आए थे। तो इसलिए क्वेश्चन पूछने के लिए भी नॉलेज गेन करना और अपना विज़डम डेवलप करना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, नेक्स्ट इसमें आ जाती है हायरार्की ऑफ एग्जिस्टेंस, के सबसे पहले हायरार्की ऑफ एग्जिस्टेंस में अगर हम देखें तो सबसे पहले जो है हायरार्की में एग्जिस्टेंस की, सबसे पहले तो अल्लाह ताला आते हैं, क्रिएटर, जिसने पूरी दुनिया को बनाया। फिर उसके बाद आ जाती है हमारी यूनिवर्स, गैलेक्सीज, यूनिवर्स, पैरेलल यूनिवर्सेस, स्टार्स, ये वो। फिर आ जाता है हमारी दुनिया, वर्ल्ड, फिर हमारा लोकल एरिया, और फिर आ जाता है सेल्फ। इसी हायरार्की ऑफ एग्जिस्टेंस को लेते हुए अगर हम बात करें तो जो सबसे छोटे क्वेश्चन है वो हमारी ज़ात से मुंसलिक होते हैं, और पाकिस्तान में तो ये बहुत आम है, फलां ने ये कर दिया, फलां ने गाड़ी ले ली, फलां की शादी हो गई, फलां की बेटी ने ऐसा कर दिया, फलां ने ये कपड़े पहन लिए, फलां ने नया घर ले लिया। इन चीज़ों से हम बाहर ही नहीं आते, ज़ाती सवालात से, अपनी ज़ात से, दूसरों की, मतलब ये इनको कहते हैं जो छोटी शॉर्ट वो होते हैं। फिर उसके बाद लोकल एरियाज आ गए, अब इसमें आ जाती है पॉलिटिक्स, ठीक है? ये आपको मैं हायरार्की ऑफ एग्जिस्टेंस से बता रही हूँ कि किस तरह हमारे सवाल जो हैं वो बड़े होते हैं। जब हम अपनी ज़ात तक महसूर होकर रह जाते हैं तो वो हमारे सवालात भी छोटे हो जाते हैं। अच्छा, फिर उससे बड़े आप लेवल पर आएँ, पॉलिटिक्स आ गई, लोकल एरिया, पाकिस्तान, कंट्रीज़ की बात हो गई। फिर वर्ल्ड लेवल के सवालात हैं, वो वहाँ पे आके जो है ना वो सवालात फिर बड़े होना शुरू हो जाते हैं। अब वर्ल्ड लेवल के सवालात हैं जैसे कि दुनिया के मसाइल हो गए, पॉवर्टी हो गई, करप्शन हो गई, ये चीज़ें हो गई। तो यहाँ अपनी ज़ात से और अपने लोकल एरिया से जब आप निकलते हो बाहर, तो फिर आपके सवालात में भी इज़ाफ़ा होना शुरू हो जाता है, और इंक्लूडिंग योर नॉलेज एंड विज़डम। फिर यूनिवर्सल सवालात, फिर यूनिवर्स की तरफ जब आप आते हैं तब आपको वो, जब ये बड़ी एक से एक बड़ी चीज़ पे आप जाते हो तो आपको वो खुद ब खुद क्रिएटर की तरफ ले जाते हैं। आपके सवालात खुद आपको अल्लाह की तरफ पहुँचा देते हैं। तो इसीलिए जो जितना आप अपनी ज़ात में महसूर होंगे उतने आपके सवालात जो हैं वो लो क्वालिटी होंगे, एंड देयर विल बी द शॉर्टर क्वेश्चंस, नॉट द बिगर वंस। बिगर क्वेश्चंस के लिए आपको बड़ा सोचना पड़ेगा, आपको दुनिया का सोचना पड़ेगा, अपनी ज़ात से निकल के दुनिया के बारे में सोचना पड़ेगा, यूनिवर्स के बारे में सोचना पड़ेगा। इसीलिए तो आजकल बाहर की दुनिया वाले हमसे बहुत आगे हैं। क्यों? क्योंकि उनके सवालात बड़े हैं, वो आसमान की तरफ देखते हैं, वो उन उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं कि जिनके बारे में हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो Excuse नेक्स्ट me, इसमें Anuj. Your जी, time जी। is already done. Kindly please wrap up your presentation. बस थोड़ा-सा रहता है, जस्ट जस्ट 1 मिनट और। अच्छा, इसमें सूरह बकरा में कुछ सवालात के मैंने सिर्फ़ रेफ़रेंसेस यहाँ पर दिए हैं कि जो कुरान पाक में आए हैं हमारे पास, ठीक है? नेक्स्ट मैं आपको शेयर कर देती हूँ।
کہ اللہ تعالیٰ نے جن کو بہت اپریشیٹ کیا. اچھا سوال کو سال کہا جاتا ہے عربی میں, تو قرآن پاک میں اس میں ویسے تو کافی سارے تھے لیکن کیونکہ مجھے سارے میں کنکلوڈ نہیں کر سکتی تھی, تھوڑے سے سوالات کو میں نے یہاں پہ لکھا ہے. ٹھیک ہے. انڈیڈ دا موسٹ آف لیونگ کریچرز, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی بتایا کہ سوال پوچھنے کی کیا اہمیت ہے. اس میں ڈفرینٹ آیات ہیں, میں ایک دو آپ سے شیئر کر رہی ہوں. انڈیڈ دا موسٹ آف لیونگ کریچرز in the sight of Allah are the deaf dumb who do not use reason. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو دنیا سب سے بری مخلوق وہ لگتی ہے کہ جو ڈیف اور ڈم جو کہ اندھی ہو چکی ہے اور بہری ہو چکی ہے اور جو کہ اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتی. ٹھیک ہے. تو اسی طرح یہ قرآن کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت خوبصورتی سے بتا دیا. The example of two groups is that of a blind and a deaf person is on one hand and the seeing and hearing is on other hand. Are the two equal when compared? Would you still pay no heed? یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن پاک میں پوچھا ہے ایک اس میں کہ کیا دو لوگ برابر ہو سکتے ہیں, ایک وہ جو اندھا اور بہرا ہے اور ایک وہ جو سب دیکھتا ہے اور سنتا ہے. یعنی کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ان دو لوگوں کی کمپیریزن بتائی ہے کہ جو جاہل ہے اور جو علم حاصل کرنے والا, کیا وہ کبھی ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ نہیں, بالکل بھی نہیں. اچھا اور بھی آیات ہیں, ٹائم شارٹ ہے اس لیے میں ان کو پڑھوں گی نہیں. نیکسٹ فیو بگ کوسچنز ہیں. Where did I come from? Who am I? Why I am here? Why should I live? Why we die? ہم مرتے کیوں ہیں? What happens after death? And where am I going? یہ کچھ bigger questions ہیں جس کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے. اور bigger questions وہ questions ہوتے ہیں کہ جو ہمیں نہ صرف دنیا اور آخرت کے مسائل کے حل بتاتے ہیں بلکہ ہمارے مرنے کے بعد بھی اس کا کوئی ٹائم فریم نہیں ہوتا. یعنی کہ وہ سوالات ہوتے ہیں کہ جو ہم ہوں یا نہ ہوں وہ دنیا کے لیے, ہیومینٹی کے لیے بیٹرمنٹ ہی کریں گے. اور دس از دا لاسٹ. اس میں ایک اور چیز آخر میں ایڈ کرنا چاہوں گی. تھینک یو سو مچ. جیسے پاورٹی ہے تو اب وہ سوالات پھر ہمیں لے کر جاتے ہیں کہ پاورٹی کو کیسے حل کریں. تو اس میں ہم یہ کر سکتے ہیں کہ جیسے ہم اپنے سسٹم کو چینج کر سکتے ہیں, سسٹم کو چیلنج کر سکتے ہیں کہ اس سسٹم میں اگر پاورٹی ختم نہیں ہو رہی تو دیر شوڈ بی اندر سسٹم. تو یہاں پر آ کر پھر مسلمان اپنی کتاب کو لے کر آگے نہیں آتے. یہی تو مسئلہ ہے کہ ہم نالج نہیں گین کرتے, نہ ہم ان سوالوں کے جواب دے سکتے ہیں. جب تک ہم نالج نہیں گین کریں گے اور وزڈم نہیں ڈیولپ کریں گے, ہم لوگوں کے بڑے سوالوں کا جواب نہیں دے سکیں گے اور ان کو بیٹر سسٹم پرووائڈ نہیں کر سکیں گے. اگر ہم یہ کر لیں تو ہم ان کو ایک اسلامک سسٹم اور بہتری کی طرف لے کے جا سکتے ہیں. Thank you so much, Aruj. Very well done. Any question? Aruj, Fatma, kindly unmute yourself. Aruj, Fatma, kindly ask your question. Yes, ma'am. میرا یہ کوشچن ہے. سوری پہلے وعلیکم جی. آئی ایم اے اسٹوڈنٹ اینڈ آئی ڈونٹ نو کہ مجھے یہ کوشچن کرنا چاہیے یا نہیں. ایکچولی میں نے فرسٹ ٹائم کوئی میٹنگ اٹینڈ کیا ہے, سو اسی لیے مجھے زیادہ آئیڈیا تو نہیں ہے. میرا ایکچولی کوشچن یہ ہے کہ ہم کسی انسان کو, ایک مطلب انسان ہے, اگر وہ کوئی گناہ کرنے جا رہا ہے تو ہم اسے گناہ سے کیسے روک سکتے ہیں؟ وی نو کہ مطلب ہم گناہ سے نہیں روک سکتے کسی کو, بس اسے منع کر سکتے ہیں جہاں تک ہماری طاقت ہو اسے وہاں تک روک سکتے ہیں. بٹ لیکن پھر بھی ہمیں اتنی ابیلٹی ہونی چاہیے کہ ہم ایک مسلمان کو حلال اور حرام میں ڈفرینٹ کر کے اسے دلائل دے کر اسے مطلب بتا سکے کہ ہم یہ نہیں کر سکتے. مینس اگر ایگزامپل لی جائے تو آج کل جس طرح کی بی ایف اور جی ایف کا ریلیشن شپ اگر دیکھا جائے, ان کے سب جانتے ہیں کہ یہ حرام ہے. ایک لڑکا ہے اگر وہ مطلب جانتا ہے کہ یہ حرام ہے لیکن پھر بھی وہ خود پہ کنٹرول نہیں کر پا رہا, بس اسے یعنی کہ ہے کہ نہیں میں نے بنانی ہے, بنا کے بے شک چھوڑ دوں. مینس ٹو سے کہ ہم کس طرح ایک یعنی کہ روک سکتے ہیں ایک انسان کو گناہ کرنے سے. مطلب تھوڑا سا یعنی کہ ہمیں اتنی ابیلٹی ہونی چاہیے. پلیز مجھے اس کوسچن کا تھوڑا سا یعنی کہ آپ پوائنٹ آف ویو بتائیں اپنا, کیا آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں. اوکے عروج, آپ آنسر دینا چاہیں گے؟ عروج, آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ I don't see her here. Yeah. Farhana, please, would you like to give her answer? I will take. Okay. So Jazakallah khairan, Sister Aruj. I mean, یہ ہمارے ٹاپک سے تھوڑا سا ڈفرینٹ تھا, لیکن definitely it is the Muslim کا it's a job of a Muslim to tell anyone if he sees anything wrong. تو بالکل آپ wisdom کے ساتھ.
आप विजडम के साथ आंसर यू नो ट्राई टू टेल द पर्सन, सामने वाले बंदा जो गलत काम कर रहा है उसे आप विजडम के साथ और यू नो इन अ काइंड वे, एंड जो भी विच इज द बेस्ट वे टू डू इट, आप डेफिनेटली यू हैव टू लेट देम नो वेदर दे आपकी एडवाइस लेते हैं या ना लेते हैं. इट इज, यू नो, इट्स अप टू देम. When it comes to kids, then definitely आप उन्हें ना यू नो फोर्स भी कर सकते हैं, लाइक स्पेशली टू कीप देम सेफ. तो जब सेफ्टी की बात आती है, क्रिटिकलिटी बात बहुत क्रिटिकल नेचर की होती है, तो फिर आपको थोड़ा सा उसमें फोर्स भी इस्तेमाल करना पड़ता है, स्पेशली जान के मामले में, टू सेव द लाइफ. बट इफ इट इज अ पर्सनल थिंग, देन डेफिनेटली आप विजडम से एडवाइस करें और मेक दुआ फॉर देम, and you know, inshallah, and you can even use, even let's bringing back to questioning, you can even ask them questions ताकि वो deep reflective mode में जाए ना. जैसे vertical question पूछिए, ये आप क्यों काम करते हो, rather than say ये सही है गलत है. थोड़ा सा आप उन्हें ऐसे questions उनसे पूछें ताकि वो सोच में आ जाए. So जज़ाकल्लाह खैरन. Okay, sister thank you. जी. उरूज, अभी जिन्होंने प्रेजेंट किया है वो उरूज, प्लीज यू स्टे विद अस. जी क्वेश्चन तो आपके प्रेजेंटेशन के हवाले से आते हैं. इजाज, काइंडली प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. ये मैं बस जो पहले बहन ने जो सवाल किया था उसका जवाब मैं देना चाहूँगा, एक किस्म का रिकमेंडेशन टाइप है, तो क्या मैं दे सकता हूँ? किस क्वेश्चन का? अभी रिसेंटली उरूज ने जो क्वेश्चन रेज किया, जो उन्होंने सवाल किया कि किसी को गुनाह से कैसे रोक सकते हैं. चलिए दीजिए, ट्राई टू सम अप क्विकली. मैं कोशिश करूँगा कि तो उसमें मैं ये कहना चाहता था कि जो किसी को गुनाह से रोक हम नहीं सकते, हमारा बस एक तो उन्हें पता चला कि हमने बस उनको मैसेज ही बताने के यार ये काम ना करें, और उसमें ये है कि वो हम दलीलों से उस पर काम नहीं चलता. किसी बंदे को हम दलील से कन्विंस नहीं कर सकते. हमें उसकी जो जिस तरह साहिल भाई बताते हैं कि उसकी वो चीज़ जिसे वो एडमायर करता है, जिससे फैसिनेटेड होता है, जिससे समझता है कि यार ये बड़ी अच्छी चीज़ है, उस चीज़ को देखना चाहिए, और उसमें जो आपके लिए फ़ायदेमंद चीज़ होगी कि उसके लिए आप इस्तेमाल कर सकें, उसे कन्विंस करने के लिए वो इस्तेमाल करें, और उसका फ़ियर इस्तेमाल करें कि किस चीज़ से उसको डर लगता है कि यार ये चीज़ नहीं होना चाहिए. इन 2 चीज़ों को इस्तेमाल करके ना, और ये दलीलों पे नहीं चलेगा कि यार कुरान में ये है और ये बिल्कुल हराम है, इस तरह की दलीलें नहीं चलेंगी. उसमें आपकी अपनी पर्सनैलिटी होनी चाहिए, कि आपकी क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए, आप उन्हें बताएँ कि यार मुझे पता है, आप मेरे पे ट्रस्ट करें, और दूसरा कि ये मेरा, और इमोशनली आप उस बंदे से कनेक्ट हो कि यार मैं तुम्हारा भला चाहता हूँ, मैं तुम्हारा नुकसान नहीं चाहता. और तीसरी बात ये है कि वैसे लॉजिकल भी कुछ रीजनिंग होगी, मगर ये किसी को कन्विंस करने के लिए ना ज़रूरी नहीं कि लॉजिकल रीजनिंग से कोई माने, आपको बस इमोशनल और क्रेडिबिलिटी बनानी होगी कि वो आपकी बात माने. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच इजाज. थैंक यू सो मच. शमीम, काइंडली प्लीज यू अनम्यूट योरसेल्फ. शमीम जी. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. मैम मेरा क्वेश्चन ये था कि हमने जो अपने बड़ों से अल्लाह ताला का तारुफ सुना है ना, वो बहुत अलग लगता है जब हम कुरान पढ़ते हैं या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी भी हदीस हैं वो पढ़ते हैं, सहाबा के कौल, हमें वो तारुफ अल्लाह का नहीं बताया गया जो कुरान में बताया जाता है. अल्लाह कुरान में बहुत सख्त है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत है जिसमें सहाबा, हमारे यहाँ तो बस ये है कि लोग कहते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफात कर देंगे इस वजह इस आसरे में बैठे हुए, तो हमारे जहन में वो बातें क्यों नहीं आती जो सहाबा जिस तरह से हम अचीव करते थे. बस मुझे इस मुतालिक बात जरा करनी थी, कोई अगर जवाब दे दे तो बेहतर. जी ठीक है. उरूज, आप एड्रेस करेंगे इनके आंसर? जी जी बिल्कुल. अच्छा, आप सुन रहे हैं? जी बोलिए. हेलो. अच्छा, इनका जवाब मैं देना चाहूँगी. देखिए, सहाबाए कराम की ज़िंदगी पे अगर आप नज़र डालें ना, तो उनका ताल्लुक सबसे पहले तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था, और फिर उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका तारुफ कुरान पाक से करवाया. उनकी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद भी वो जितनी भी हिदायत लेते थे, जिसमें कि हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास का सबसे टॉप पर नाम आता है
کہ उनको कहते थे कि सी ऑफ नॉलेज, कि वो उनका सारा जो विजडम था, शऊर था, वो कुरान बेस्ड था। वो कुरान के साथ उनका इतना इंटेलेक्ट था और वो कहते थे कि कायनात का कोई सवाल ले आओ, उसका जवाब मैं आपको कुरान से दूँगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हिज्जतुल विदा में अपने उम्मतियों से क्या कहा? सिर्फ़ उम्मतियों से नहीं, तमाम दुनिया को ही कहा था, लेकिन क्योंकि हम मुसलमान हैं, तो हमें तो उनकी बात ज़्यादा उससे ग्रैस्प करनी चाहिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये हुक्म दिया, तो इसको तो हमें मानना चाहिए। उन्होंने फरमाया कि मैं तुम लोगों में एक ऐसी चीज़ छोड़कर जा रहा हूँ कि जिसे तुम थाम कर रखोगे तो तुम कभी गुमराह नहीं होगे, और वो है अल्लाह की रस्सी, अल्लाह की किताब। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क़यामत तक के लिए बता दिया कि आपकी रहनुमाई जो है वो इसी में है। तो अगर दुनिया ने आपका तारुफ़ अल्लाह ताला का गलत कराया है, तो आपने दुनिया को नहीं देखना, आप कुरान पाक को मज़बूती से पकड़ें और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरा को देखें कि उन्होंने अल्लाह को कैसे समझा था। उनकी साइकोलॉजी को समझेंगी ना, तो आपको अल्लाह ताला वैसे ही नज़र आएँगे और आपके अमल में भी फ़र्क आएगा उससे इंशाअल्लाह। Thank you so much. Thank you so much, Uruj. Amna Bashir, please, you unmute yourself. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा सवाल ये था कि हम तो इंटेलेक्चुअली इतने लो हैं और वेस्ट वाले इंटेलेक्चुअली बड़े हाई हैं, तो हम शुरू से तो ऐसे नहीं थे, हम शुरू से ज़मीन पे नहीं पड़े हुए, तो हम किसी लेवल से ही नीचे गिरे हैं। तो आई वांट टू नो कि रीज़न क्या था? मतलब बहुत से लोग सोचेंगे अम्मी-अब्बू, आई एग्री अम्मी-अब्बू, बट वो इतने दीनदार और इतने इंटेलेक्चुअली हाई अम्मी-अब्बू को एकदम क्या हो गया था? आई वांट टू नो। ओके, उरूज आप हमारे साथ हैं, आप एड्रेस करेंगे क्वेश्चन को? Sister Uruj is not here. Sister Farhana, Uruj please, is not would here. you like to जी जी. address? Yeah, please. yeah. So, Sister Amna, na? Yeah, Sister Amna, Jazakallah khair. Very good question. Subhanallah. So, you know, I just actually wanted to add this couple point. इसमें सबसे बेहतरीन point ये है कि you are observing and you're finding out and you're identifying the problem. तो the identification of the problem is the most important. और आपने identify किया कि हमारी intellect level is not as high, you know. So that's the first thing. So the second thing now is, now you have to start asking questions कि why is the case. तो इसके लिए I would, you know, want you to start asking horizontal questions कि when did this start, when did we lose the intellect, you know, which areas of Muslim Ummah have lesser intellect. तो इसमें आप information gather करें. So you want to keep asking and keep gathering information, horizontal questions. और उसके बाद फिर then you can go into the vertical questions कि why did we do this. So subhanallah. So, you know, if I think of this, you know, in a nutshell, we lost our knowledge of the Quran and the Sunnah. That is one. And the second one is, you know, we started loving the world, you know, more. You know, the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, we love the world and we hate death. So that is in a nutshell, the answer for this. But keep asking more questions and, you know, go ahead. And this responsibility is on us. Our individual takes self-responsibility and brings a solution. Jazakallah khairan. थैंक यू सो मच। फरहाना, एक क्वेश्चन चैट में है, मैं चाहती हूँ आप इसको एड्रेस करें। व्हाट वुड बी अ पॉइंट और लाइन बिटवीन क्रिटिकल थिंकिंग एंड ओवरथिंकिंग? Yeah, that's a good one. Yes, critical thinking and overthinking. You know, both of them, there's more a psychological difference in both. Critical thinking is when you are very, very clear about what the problem is. When you have a very, you know, you are going to get the knowledge, you're going to research, you're going to learn, going to understand, use your logic and try to come up with a solution. So that is the essence of critical, you know, thinking. And you're able to distinguish between right and wrong or good and bad, benefits and risks. So that ability is there in critical thinking. So overthinking is when it's more of a state where you are driven by a sense of fear. And in overthinking, you keep going round and round, not really pinning down on the solution. The same question goes on and on and on, creating a sense of fear.
So the brain is saying, this is a fearful thing, let's keep asking it again and again and again. And that is the main hallmark of overthinking. You don't end up doing any of the critical thinking. You don't end up gaining knowledge or coming to a solution. You're not able to distinguish between Farhana, benefits and risks. It's a great addition. If you would like to answer this question in Urdu, please. Everyone is asking. अच्छा, ओके सही ठीक है. तो या तो उर्दू में अगर बताऊं तो क्रिटिकल थिंकिंग जब करते हैं ना, तो हमें पहले तो क्वेश्चन सही से समझ में आ जाती है कि क्या मसला क्या है. उसके बाद हम उसे नॉलेज गेन करने में हम अपना टाइम स्पेंड करते हैं कि हम इल्म हासिल करें. फिर उसके बाद हमें ये सेंस होती है कि फ़ायदा किस में है, नुकसान किस में है, अल्लाह के करीब किस रास्ते से जा रहे हैं और किस से नहीं, और हम फिर उस पे सॉल्यूशन और उसका हल पे पहुंच जाते हैं. ओवर थिंकिंग में ये होता है कि हम बार-बार क्वेश्चन के अतराफ घूमते रहते हैं, बस वही क्वेश्चन बार-बार पूछते हैं. और ओवर थिंकिंग में के अंदर एक थोड़ा-सा एक किसी बात का खौफ होता है या किसी चीज़ का डर होता है, और उसी में हम वही उसमें फँस जाते हैं और उसी चीज़ के बारे में हम बार-बार क्वेश्चन करते रहते हैं. उसमें कुछ हम हल नहीं लाते, हम उसकी हल पाने के लिए इल्म हासिल करने की तरफ भी नहीं जाते. तो ये है ओवर थिंकिंग के मसले. इसमें ओवर थिंकिंग में फ़ायदा नहीं होता और आपको और एंग्जायटी होती है, आप बेचैनी महसूस करते हो. सो दैट इज़ काइंडली व्हाट आई हैव. सिस्टर सदफ, आपको अगर यू हैव एनी मोर इनसाइट्स, प्लीज गो अहेड. ओके, थैंक यू. अब हम लोग एक लास्ट 2 क्वेश्चंस ले लें, फिर उसके बाद इसको हम सम अप करेंगे. ईमान, काइंडली अनम्यूट योरसेल्फ. शकीला, आई विल टेक यू एट द एंड. ओके, आई विल गिव यू अ चांस. ईमान, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ. Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम. जी. Can you guys hear me? Yes, we can. अच्छा, एक्चुअली मैं थोड़ा सा एडिशन करना चाह रही थी. जब भी किसी प्रेजेंटर ने ये बताया था कि, बल्कि किसी का क्वेश्चन था ये, कि क्यों वेस्ट से इतने सारे क्वेश्चंस अराइज होते हैं और वो रिसर्च करते हैं और वो आगे हैं और वो दुनिया डिस्कवर कर रहे हैं, यूनिवर्स डिस्कवर कर रहे हैं, और हम स्टिल बहुत पीछे हैं. हम हमेशा पीछे गिरे हुए तो नहीं थे, बल्कि हमारे भी बहुत सारे साइंटिस्ट, बल्कि पायनियर्स थे हमारे साइंटिस्ट, तो शुरू में उनके सिलेबस को फॉलो कर रहे थे वेस्ट वाले. तो अब ऐसा क्यों है? तो मुझे जो इसका सबसे बड़ा रीजन नजर आता है, जो हमारा सिस्टम फेलियर है. हमारा सिस्टम थ्रू आउट करप्ट है, इंक्लूडिंग एजुकेशन सिस्टम. तो अब इस सिस्टम को कैसे चेंज करें, ये सबसे बड़ा बिगर क्वेश्चन है. कि हम इंडिविजुअली अपने तौर पे हर कोई कोशिश कर रहा है, बट कलेक्टिवली ऐसा कौन सी रेवोल्यूशन आए जो हमारे मुल्क का सिस्टम चेंज करे, जिससे हर जगह ऑनेस्टी हो. जब हर जगह ऑनेस्टी होगी तो एजुकेशन में भी ऑनेस्टी होगी, मेरिट में भी ऑनेस्टी होगी, जॉब्स में भी ऑनेस्टी होगी. फिर आप फिजिसिस्ट भी प्रोड्यूस करोगे, साइंटिस्ट भी प्रोड्यूस करोगे, साइकोलॉजिस्ट भी प्रोड्यूस करोगे, जो वेस्ट का मुकाबला कर सकेंगे. हमें तो उलझा के रखा हुआ है. पानी नहीं आ रहा, बिजली नहीं आ रही, गैस नहीं आ रही. हमारी तो जिंदगी के मामलात ये हैं. वेस्ट से तो हमारा कोई कंपैरिजन नहीं है. हम तो बेसिक नेसेसिटीज से महरूम है. तो जब हमारी बेसिक नेसेसिटीज ही नहीं पूरी होंगी, तो वहां उससे आगे हम बिगर क्वेश्चंस और बिगर थिंकिंग पे जाएंगे कैसे? हमें वहां तक जाने के लिए पहले एक स्टेबल स्टेट ऑफ माइंड तो होना चाहिए. वो तो उससे तो हम महरूम हैं, डिप्राइव्ड हैं. तो हमें सिस्टम में कैसे चेंज लाना है, ये सबसे बड़ा सवाल है. बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है, सही कहा आपने. सुमेका, प्लीज. उनके तो पेट भरे हुए हैं, वेस्ट वालों के तो पेट भरे हुए हैं. उनको तो रोटी पानी खाना सब मिल रहा है टाइम पे. तो डेफिनेटली दे विल रिसर्च, दे विल यूज देयर एनर्जी, देयर पॉजिटिवनेस इन रिसर्च. और टू नेशंस में कंपैटिबिलिटी नहीं है, अगर हम वेस्ट की बात करते हैं. सही है. एग्जैक्टली. थैंक यू. तो इसको सिस्टम को, हमारे सिस्टम को पहले थ्रू आउट पूरा चेंज करना पड़ेगा. हमारे सिस्टम में हर जगह करप्शन है. इवन एजुकेशन सिस्टम का सिलेबस आप देखिए किस जमाने का चल रहा है, वो अपडेट ही नहीं करते. जो हमारे मिनिस्टर्स होंगे वो खुद ही इतनी मैट्रिक पास भी नहीं होंगे, तो वो क्या अपडेट करेंगे? उनको क्या क्राइटेरिया पता है कि वो फिजिक्स प्रोड्यूस करें यहाँ पे या साइंटिस्ट प्रोड्यूस करें? ये वो तो कोई यहाँ प्रोड्यूस हो भी जाए अच्छा, तो उसको
इतने बदतरीन ट्रीटमेंट मिलेगा कि वो अपनी जान बचा के दूसरे मुल्क भागेगा। तो कहाँ अपने पहले सिस्टम से तो फाइट करें हम। हमारा तो सबसे बड़ा बिगर क्वेश्चन यही है। Yes, you are right. Okay, next question लेते हैं सुमाइका. Kindly unmute yourself. जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम. जी मैंने पूछना था कि क्रिटिकल थिंकर होने के लिए हमारे पास पहले तो नॉलेज होना चाहिए, और वो नॉलेज हम किसी ना किसी सोर्स से जो है वो सीख करते हैं। तो वाइल गेनिंग नॉलेज हमारे जहन में कई सारे सवाल आते हैं जिनका शायद उस टाइम हमें जवाब ना पता हो या हमें मिल ना रहा हो। तो वो जो उस टाइम हमारे पास वाइल गेनिंग द नॉलेज, उस प्रोसेस के अंदर जो हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं वो हम किन को डायरेक्ट करें? क्योंकि जब हम अपने क्वेश्चंस किसी को डायरेक्ट करते हैं, मतलब का दो तीन लोगों से उनकी ओपिनियंस पूछते हैं, तो हमारे पास काफी सारी ओपिनियंस आ जाती हैं, और ऐसे होता है कि एक की ओपिनियन दूसरे की ओपिनियन से 180 डिग्रीज जो है ना वो मुतजाद होती है, बिल्कुल ऑपोजिट ओपिनियन आ जाती है। तो उस वक्त हमें समझ आता है कि किसकी ओपिनियन ज्यादा सही है। वाइल गेनिंग नॉलेज हमें अपने क्वेश्चंस होल्ड करके रखने चाहिए, ताकि जब हम अपना पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर लें उसके बाद हमारे जो क्वेश्चंस अराइज हो उसको या तो हम खुद ही आंसर कर लें, या हम लोग अपने क्वेश्चन को जो है वो किसी की तरफ डायरेक्ट करें। तो हमें कैसे पता चलेगा कि क्या सोर्स उसका बेहतर सोर्स है आंसर देने के लिए? ठीक है, thank you सुमाइका. Uruj, kindly address, would you like to address this question? अच्छा सिस्टर, आपके क्वेश्चन का मैं आंसर देना चाहूँगी कि फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप रिसर्च करते हैं, जो आपके क्वेश्चंस अराइज होते हैं, सबसे पहले तो आपको खुद ही उस पे वर्कआउट करना चाहिए कि आप खुद उसके आंसर्स ढूंढें। हाँ, अगर आपके आंसर्स आपको नहीं मिलते फिर आप किसी और से पूछें, और वो क्वेश्चन जो कि आपको आपकी रिसर्च वर्क से डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं वहां पे फिर आप फुल स्टॉप लगा देंगे। हाँ, अगर आपको उस आपकी रिसर्च में कोई बेटरमेंट नजर आ रही है आपके क्वेश्चन से, तो आप ज़रूर पूछें, लेकिन वो क्वेश्चन आपने कहा ना कि हमें पूछने चाहिए या नहीं, तो वो क्वेश्चन ज़रूर आप पूछें उस टाइम पे, वरना आपको वो नॉलेज नहीं आएगा। तो लेकिन वो क्वेश्चंस के जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं आपके एक्चुअल एजेंडा से, तो आप काइंडली उनको अवॉइड करें, उनको छोड़ दें, उनको बाद के लिए छोड़ दें। हाँ, बाद में कभी आपके नॉलेज में इज़ाफ़ा हो, फिर भी समझ ना आए तो फिर पूछ लें। Thank you so much, Uruj. Thank you so much, Aisha Ahsan. Amna Bashir, I think so I have taken your question. अगर आपका कोई क्वेश्चन है आमना, you can write in the chat. Aisha Ahsan, kindly unmute yourself. अस्सलाम वालेकुम. सदफ, एक्सक्यूज मी. Yes, Uruj. सॉरी फॉर कटिंग. मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी. पहले एक सिस्टर ने बोला था कि हमारे सिस्टम का मसला है, तो देखिए बेसिक नेसेसिटीज तो सहाबा कराम की भी नहीं थी, लेकिन उनके क्वेश्चंस बिगड़ थे, तो दिस इज नॉट द रीजन. आपकी बेसिक नेसेसिटीज का फुल होना क्वेश्चंस के बिगड़ होने के लिए ज़रूरी नहीं है. आपकी थिंकिंग का बिग होना क्वेश्चंस के बिग होने के लिए ज़रूरी है. तो अपने नॉलेज की गेन के लिए आप कुरान के साथ दोस्ती करें, और साइंस कुरान और सारे तमाम उलूम के साथ जितने भी साइंटिस्ट गुजरे हैं, क्या उनकी बेसिक नेसेसिटीज पूरी थी? मुस्लिम वर्ल्ड में जो साइंटिस्ट गुजरे हैं, नहीं. बहुत से ऐसे थे जो गरीबों के घरों में थे, जो फाके करते थे. हमारे पास सहाबाए कराम के एग्जांपल्स हैं, वो भी फाके करते थे, लेकिन उनके क्वेश्चंस बिगड़ थे. Sahi, true. Thank you, Uruj. Thank you so much. Please ask your question, Aisha. अस्सलाम वालेकुम मैम. वालेकुम अस्सलाम. मैम मेरा क्वेश्चन सिर्फ ये है कि इस एरा में जहाँ पे जो हक की आवाज़ उठाता है या सच बोलता है, तो उसको या तो मार दिया जाता है या वो गायब हो जाता है. और हम लोगों के सिस्टम हमारा करप्टेड है, गवर्नमेंट हमारी करप्टेड है. ऐसे में हम लोगों का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है एज एन इंडिविजुअल? कहाँ से स्टार्ट करें, उसको किस तरीके से इनिशिएट करें? मतलब ये कि अगर हम लोग ये बात कहते हैं कि हमें ये चीज़ करनी है, अपने आप को इतना प्रिपेयर करना है कि फ़लस्तीन के लिए उठ सकें, लेकिन वो कैसे मुमकिन हो जब हमारी गवर्नमेंट ही ऐसी है? जैसे एक दफ़ा अपने लेक्चर में सर साहिल ने ये कहा था कि आप लोग गन्स की, आर्म्स को यूज़ करने की पूरी बाकायदा ट्रेनिंग्स लें, लेकिन वो कहाँ से लें? अगर यहाँ पे आर्म्स का हिसाब देखा जाए तो वो आपको पता है कि उनको भी उनका एक्सेस कितना मुश्किल किया हुआ है. तो इस कंट्री में इन सारे सिनेरियोज के साथ हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए? थैंक यू मैम. थैंक यू. उरुज, आप एड्रेस करेंगे इस क्वेश्चन को? हाँ जी, मैं अपनी तरफ से आपको ये आंसर देना चाहूँगी इस क्वेश्चन का कि सबसे पहले है शऊर
پیدا کرنا, وزڈم پیدا کرنا لوگوں میں. خود کو جب شعور آ جاتا ہے, خود کو حقیقت, حق اور باطل سمجھ آ جاتی ہے, تو لوگوں کو سب سے پہلے ایڈریس کرنا, جس کو ہم انٹلیکچوئل وارفیئر بھی کہتے ہیں, یہ سب سے پہلا پوائنٹ ہمارا ہونا چاہیے. چاہے وہ سوشل میڈیا کے تھرو ہو, چاہے وہ اپنے کلسٹر بلڈنگ کے تھرو, اپنی فیملیز میں ہو. وہی جو پہلے ایک بھائی نے کہا کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کو اپنی فیملی سے اسٹارٹ کی نا کاؤنسلنگ, حضرت خدیجہ کو ڈھونڈا, حضرت علی کو ڈھونڈا, اس طرح ہم نے اپنی فیملی میں ڈھونڈنا ہے ایسے لوگوں کو. اور جو ایسے لوگ جو فوکس کریں اور جو فوکس نہیں کرے پرابلمس کی طرف, ان کو فوکس کروانا ہے کہ پرابلم ہے. وی آر لیونگ ان اے ورلڈ وچ از فل آف پرابلمس. تو ہمیں اٹھنا ہے, کیونکہ اگر ہم ابھی نہیں اٹھیں گے, ابھی ہم نے LGBTQ کو اسٹاپ نہیں لگایا, ابھی ہم نے یہ نہیں کیا, تو ہمارے بچوں کا فیوچر آگے برا ہے. ان کی ایموشنل پوائنٹس کو ٹچ کر کے ہمیں لوگوں کو جگانا ہے. پہلے تو شعور پیدا کرنا ہے. عمران خان نے کیا کیا, کیسے اس نے گورنمنٹ کے خلاف لوگوں کو کر دیا, یہی کیا نا, شعور پیدا کیا. لیکن ان کا ایجنڈا کچھ اور تھا. دیٹ واز اے پولیٹیکل ایجنڈا. ہمارا تو ہمیں پتہ ہے دنیا اور آخرت ہے ہمارے سامنے. تو ہمیں اسی ایموشنل پوائنٹس کو لوگوں کے ٹچ کر کے لوگوں کو میں شعور پہلے پیدا کرنا ہے. پھر انشاءاللہ ود دا ٹائم ایوری تھنگ ول ورک آؤٹ. Thank you so much. Thank you. Yeah, I would like to add a few. Yes. Sure. Jazakallah khairan, Sister Uruj. Yes, I think very is. पहले आपने problem identify कर लिया, which is the first step. फिर as Sister Uruj said, आप ऐसे बंदों को इकट्ठा करें जो आपके सेम प्रॉब्लम को समझते हैं. तो डेफिनेटली कौम में आजकल तो काफी लोग नहीं हैं, लेकिन स्टिल यू विल फाइंड देम. सो आप इकट्ठा करें, उसके बाद गो हेड एंड बाहर और लोगों को अपने साथ जमा करें, और फिर आपको हमें अपने आप सॉल्यूशंस निकालने पड़ेंगी. रिसर्च करें, नॉलेज गेन करें, अपने आप को सॉल्यूशंस निकालनी पड़ेगी, और ये सॉल्यूशंस दूसरों को हमें देना पड़ेगा. सो जिसको प्रॉब्लम समझ में आ जाती है ना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है. अब उसके ऊपर ये जिम्मा आ जाता है कि वो सॉल्यूशन के लिए एटलीस्ट स्ट्राइव करे, कोशिश करे कि वो सॉल्यूशन खुद ही निकाले. दिस सुभान अल्लाह. सो सॉल्यूशन हैज टू कम फ्रॉम अस. हम ही निकालना है. अगर सॉल्यूशन अवेलेबल नहीं है तो then that means it's us time for us to dig in and find out. जज़ाकल्लाह खैर. Thank you so much. Basically, Aisha would like to ask कि हमें कहाँ से start करना चाहिए? What would be the starting point? तो definitely start आपने सीरा से ही करना है, कुरान से ही करना है, और वहाँ से अपनी learning का आगाज आप वहीं से ही करेंगे. This would be your starting point. Arshia, please unmute yourself. अस्सलाम वालेकुम. एक्चुअली मैं काफी देर से सारी क्वेश्चंस देख रही थी. आई जस्ट वांटेड टू ऐड इन अ पॉइंट अबाउट द सिस्टर आस्किंग. क्या ये दौर में मुझे भी ये चीज बहुत सताती है क्वेश्चन, क्योंकि आई लिव इन इंडिया एंड योर हालात ऐसे है कि वी कैन नॉट डू एनीथिंग मच. पीपल हैव डन एंड दे आर लाइक इनटू literally prisons. They are not here with us. Whoever have tried to do something big or epic maybe. But what I have found very nice in Sahil Adim's program is this intellectual warfare जो हम लोग छोटे लेवल पर हमारे फॉर एग्जाम्पल आसपास फैमिली में छोटे छोटे यंग टीनेजर्स, आई लिटरली फील इट कि बहुत ट्राइड एंड एक्सपेरिमेंटेड प्रोजेक्ट है इनका, साहिल अदीम सर का. इट इज अल्हम्दुलिल्लाह अ वेरी ट्राइड एंड practical project which is targeting the young minds. Actually they are the one who are inshallah going to do something. पुराना generation तो we cannot do them too much, ज़्यादा नहीं फर्क होगा, लेकिन हम लोगों को उनको इकट्ठा करना है. छोटे छोटे क्लस्टर्स जो फॉर्म करने हैं, फिर फैमिली लेवल पर जाओ, नेबर वाले लेवल पे जाओ, तुम्हारे आसपास तुमको जो दिख रहे, give them some dose which will bring them to you, and then you have to give this idea what we are alhamdulillah being fed by Sahil Adim's work, what we have to do, what next. Now we have to focus on intellectual warfare somewhere, and inshallah that thing we can do, and we can do it any place inshallah. Inshallah. Thank you so much, Arshia. Thank you so much. I think almost every questions are done. Shakila, would you like to add something? I would like to give you only 1 or 2 minutes, then we will wrap up. Please unmute yourself, Shakila. Yes, thank you, ma'am. मुझे ये एड्रेस करना था कि क्रिटिकल थिंकिंग एंड ओवर थिंकिंग में कहाँ पे स्टॉप करना है, और क्रिटिकल थिंकिंग का पेडिस्टल क्या होना चाहिए. इसमें अल्लाह ताला ने 2 तरह, फर्स्ट थिंग ये है कि नॉलेज इज एवरीथिंग, और नॉलेज का एंड पॉइंट खुदा को जानना, ये पहला पेडिस्टल है.
ये इसलिए है कि साइंस अभी तक एक भी ऐसा क्वेश्चन आंसर नहीं किया है कि उसका ओरिजिन को हम पता करें. नॉलेज का मीनिंग ये होता है कि व्हाट इज नॉलेज मीन्स टू नो व्हाट एक्चुअली द थिंग इज. अगर इंसान के बारे में अपन जानना चाहे तो उसका पहला इंसान कहाँ से आया, पहला अंडा कहाँ से, या जड़ कहाँ से, हर चीज में ये क्वेश्चन उठाए तो साइंस फेल्ड, ये तो मालूम हो जाता. तो religions, all religions almost answered that God has created everything and everything reached to God only. तो ये नॉलेज का एंड पॉइंट है. तो मेरा ये क्वेश्चन इसलिए मेरे को आंसर करना था. और एक चीज क्या है कि अंदर अल्लाह ताला ने हर इंसान के अंदर फितरत में ही एक 70% नॉलेज दे दिए हैं ऑलरेडी. तो अगर किसी को क्रिटिकल थिंकिंग में ये समझ नहीं आ रहा कि कहाँ तक सोचना चाहिए, तो उनका पेडिस्टल यही है कि इंसान को कुछ चीजें दिखती, कुछ चीजें नहीं दिखती, कुछ चीजें समझ सकता, कुछ चीजें नहीं समझता. मतलब उसको अपना हद पता चलना चाहिए कि ही इज लिमिटेड, उसका नॉलेज लिमिटेड है, उसकी कैपेसिटी लिमिटेड है. तो जब वो वहां तक सोच सकता जहां तक कि अल्लाह ताला ने उसे फितरत में थोड़ा नॉलेज जितना तक दिया, वो फितरत के थ्रू नॉलेज वो पेडिस्टल पे उन्हें चेक कर सकता. दूसरा ये है कि अल्लाह ताला के बुक में उन्होंने मेकर वो है तो पूरा वही बताएंगे ना कि कौन सा सिस्टम कहाँ तक चलेगा, कौन सा सही है, कौन सा गलत है. तो ये दोनों पेडिस्टल के ऊपर अगर आप चेक करेंगे तो ओवर थिंकिंग और क्रिटिकल थिंकिंग भी स्टॉप कर सकते हैं. और एक आइडियोलॉजी, दिस इज द करेक्ट, दिस इज द रॉन्ग, या कुछ भी डिसाइड करने के लिए भी सेम पेडिस्टल फिर वही होना चाहिए कि नॉलेज अल्लाह ही है. इसमें तो कोई दोहराई, कोई बोल ही नहीं सकता. भी इसके बारे में मैं 1 घंटा भी लेक्चर कर सकती हूँ, लेकिन अब टाइम नहीं है तो मैं सिर्फ एक सेंटेंस में बोल रही हूँ इसको. और किसी ने ये पूछा था कि गुनाह से कैसे बचे. ओनली रीजन इज जिसको अल्लाह के ऊपर डर है वो गुनाह नहीं कर सकता, इसके सिवा कुछ भी. और वो कैसे, एक फितरत में है, वो खुद उसकी रूह नहीं चाहता कि वो गलत करे. हर किसी के अंदर ये उसकी फितरत में होता. दूसरा ये है कि अल्लाह ताला के जी अल्लाह ताला की बुक में भी रिस्ट्रिक्शंस लिख के दिए हैं कि ये करो, ये मत करो. सो दिस टू आर द पेडिस्टल्स दैट समवन कैन डू गुड और बैड. बुरा ना करने की दो ही चीजें हैं. एक अल्लाह से डरने के लिए फर्स्ट उसको ये पता हो कि नॉलेज का अल्टीमेट पॉइंट अल्लाह है, कोई देख रहा है, मेरे को बनाए, ये अच्छा है, ये बुरा है. अब एक इंसान एक मूवी देखता है तो उसको हम ये नहीं बताते कि हीरो कौन है, विलन कौन है. मूवी देखते ही उसको मालूम हो जाता है कि कौन अच्छा कर रहा है, कौन बुरा कर रहा है. बच्चे को भी मालूम हो जाता. तो इट इज अवर इनेट मोरालिटी, अपने अंदर है वो फितरत. It is the half knowledge, and Quran is not only Quran, all the books which are ascended from the sky, वो knowledge. और reason and effect, अपना intellect में जो reason and effect आता ना, जो अपना इंटेलेक्ट एक्सेप्ट नहीं करता, लॉजिकली एक्सेप्ट नहीं करता. समटाइम्स लोग बोलते हैं ना अल्लाह नहीं दिखते तो वो जने नहीं मानते, ये रीजन एंड इफेक्ट. लेकिन उन लोगों को नहीं विजडम नहीं है कि जो चीज नहीं दिखती वो नहीं हो सकती है, तो नहीं हो सकती ना. हवा नहीं दिखता, बहुत चीजें नहीं दिखती, सोच नहीं दिखती, लेकिन है वो. तो जिसके पास विजडम सीधा नहीं है वो लोग ये आंसर नहीं कर सकते. तो लिमिट यही है कि उसके फितरत में, उसके लॉजिकल थिंकिंग में, और कुरान और अदर बुक्स, ये these are the pedestals of all your questions, maximum questions, whatever up to now they ask, you know, what is the end point of thinking, वो भी वही है. किस पेडिस्टल के ऊपर थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग को टेक्स्ट करना, वही है उसका भी आंसर. क्यों सिस्टम चेंज नहीं हो रहा, वो भी उसका सेम आंसर है. सिस्टम इसलिए नहीं चेंज हो रहा कि एक्चुअल क्वेश्चन को कोई एड्रेस ही नहीं कर रहा. एक्चुअल क्वेश्चन ये है कि हु इज द क्रिएटर. अगर वर्ल्ड पूरा ये माने कि वर्ल्ड में असल क्रिएटर कौन है की तरफ अगर सभी देखने लगेंगे तो उनका साइंटिस्ट पूरे फेल हो जाएंगे कि किस चीज में क्यों आया. ये पूरे कुछ भी आंसर नहीं है उनके पास. उन लोगों को मानना ही पड़ेगा कि कोई तो है. जब यहाँ आएंगे तो ऑटोमेटिकली उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस करने आएंगे, वो सिस्टम करेंगे, लेकिन ये पूरे होंगे नहीं. लेकिन होना तो इसी तरह से है. तो ये कभी भी नहीं हो सकता कि सिस्टम ऐसा चेंज हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता. Thank you so much, Shakila. Sorry, we are running out of the time. Adnan, Riaz, Nargis, can you please write down your question in the chat? Adnan and Nargis, you both, can you please? Adnan, please unmute yourself. जी प्लीज पूछिए. आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है, पूछिए क्वेश्चन. आपने जो चैट डिसेबल की हुई तो आपको कैसे मैसेज सेंड करूं? अच्छा, चैट ऑफ है. ओके, नो प्रॉब्लम. आप पूछिए प्लीज क्वेश्चन. आप, मेरा क्वेश्चन तो नहीं है, मैं क्रिटिकल थिंकिंग और ओवर थिंकिंग से रिलेटेड अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाह रहा था.
जी प्लीज अगर दीजिए। आपकी इजाजत हो तो। जी श्योर बेसिकली क्रिटिकल थिंकिंग जो होती है वो आपकी नॉलेज बेस होती है, आपको उसके लिए सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको इंस्टेंट रिप्लाई आता है। आप किसी की वीडियो देख रहे हो, एज लाइक फिक में लाइक हमारे 4 ज्ञान में 5 है बेसिकली, इमाम जाफर, इमाम अबू हनीफा और 3 दूसरे। तो आप अगर एक को स्टडी करते रहेंगे आपको कभी भी क्रिटिकल थिंकिंग नहीं बन सकेंगे। आप जब 5 की स्टडी करेंगे तो आप क्रिटिकल थिंकिंग बहुत अच्छे तरीके से करेंगे और इंस्टेंट रिप्लाई दे सकेंगे। एज लाइक हम्बल के दौर में एक क्या नाम है, एक शख्स आए, वो कहने लगे कि एक स्कॉलर आए जो कुरान की ऐसी डेफिनेशन बयान करने जो हमने आज से पहले नहीं सुनी। तो हम्बल ने इंस्टेंट रिप्लाई दिया कि झूठ कह रहे हैं, क्योंकि जो कुरान को बयान किए जा चुके, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करके जा चुके, आपको ये ऐसी फर्दर एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है जो नहीं हो। और दूसरी ओवर थिंकिंग जो है, ओवर थिंकिंग बेसिकली ये होती है, बिलफर्ज मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरा आपकी क्या नाम है बातों पे दौर नहीं, आपके माइंड में जो चल रहा है मेरा उसके ऊपर फोकस है, और वो तो अल्लाह के अलावा कोई भी नहीं जानता, गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। तो इंसान ओवर थिंकिंग करता रहता है और उन चीज़ों की तरफ जाता है जो एग्जिस्टेंस नहीं रखती, और उसका प्रॉब्लम ये होता है इंसान एंजाइटी की तरफ, ओसीडी की तरफ, ऑब्सेशन, कंपल्सिव डिसऑर्डर, डिप्रेशन, सैडनेस और क्या नाम मेंटल डिसऑर्डर की तरफ चला जाता है, मेंटली सिक हो जाता है। तो और ये जो ओवर थिंकिंग जो बेसिकली होती है लैक ऑफ नॉलेज की वजह से होती है। अगर आपके पास नॉलेज है आप कभी भी ओवर थिंकिंग की तरफ नहीं जाएंगे, नॉलेज ना होने की वजह से बंदा ओवर थिंकिंग की तरफ जाता। बस यही मैं कहना चाह रहा था, शुक्रिया। थैंक यू सो मच अदनान, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी बात की आपने, थैंक यू। जी फरहाना, आई थिंक Jazakallah khairan everyone for attending. Subhanallah, presentations were very nice, very insightful. Mashallah, काफी engaging audience थी, questions बड़े deep थे, और Sister Shakila, mashallah, for your help as well, for answering questions and giving us insights as well. So inshallah we will wrap up. Feedback form हमने chat में डाल दिया है. Please fill up the feedback form. So that's way we'll keep on, inshallah, keep on improving. And please also attend the critical thinking sessions जो हो रही हैं every Saturday, or skill presentation sessions हो रही हैं every Wednesday. So please attend all of those and increase your knowledge. May Allah subhanahu wa ta'ala help guide us to the right path. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جزاك الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.